Hi, good afternoon to everyone in London. Hi, thank you so much for joining. I know a lot of members are still joining, so we will wait for our friends to join in a bit. We already have Shivam Gupta with us. Today's session is going to be a little in Hindi and a little in English for the simple reason that you are talking to a person who is, you're going to hear about working in the Hindi film industry and the Indian film industry. So both Hindi and other languages is what Shivam does work with. So having said that, we will be alternating. This session is being recorded. The recording of this session will be available on our channel, which is on YouTube very soon. So you should be able to go back and see it. So in case you have any difficulty or you drop off, please don't worry. We can readmit you, or you can watch the video recording later. As you can see, Shivam is already with us. We are just waiting for a few more members to join us. Meanwhile, while we are waiting for other participants to join, because I think everybody has been told about the timing. But just in case people are a little bit confused about the timing, we are giving everyone 4 5 minutes. We've sent a WhatsApp as well to all participants. But we're going to wait a little bit. I hope that's fine with all of you. Great. Thank you. So it'll be great, if you can, this is an interactive session. So you will be asking your questions. You can ask Shivam about the workshop. What is it that you will learn? Most importantly, what is the outcome that you should expect after the workshop is over? This workshop is being conducted in central London. The details and the locations of the workshop are on our website. I won't spend too much time on that today. But it's on from the 27th of September to the 1st of October, about 3 hours or going up to maybe 4 hours every day, mostly the second half of the day. Now, these are more or less the details about where and how the workshop will happen. What is the workshop and what are you going to learn about? And what is the prospect of having joined a workshop like this, career prospects, and how should you look at working taking your career forward are the most important aspects that we will be discussing today. Having said that, as part of today's session, we have a short presentation. तो जो हमारा पीपीटी हमने बनाया है उसमें आपको वर्कशॉप के बारे में डिटेल्स बताई जाएंगी। वर्कशॉप में आप क्या सीखने वाले हैं, कितने दिन आपके साथ जो प्रोग्राम रन किया जाएगा उसमें क्या डिटेल्स होंगी उसके बारे में बताया जाएगा, एंड दैट्स व्हाट शिवम विल बी एक्सप्लेनिंग. It is a very immersive experience, and you will have to kind of keep yourself ready for those 5 days, kind of commit to those 5 days, because it is a career that you're thinking of, hopefully not a hobby. But in case you're joining it as a hobby just to understand what it is to be an actor is also perfectly fine. Just be true to yourself and true to the workshop. Give it those 5 days, and I can promise you, you will see a huge change in yourself, and you will see great amount of results. And if you've not done any workshops, or if you've done workshops in the past, this is going to be a little bit different from the others. Let me clarify, this is not entirely an acting workshop. It is an auditioning and casting workshop. So if you know acting, it takes you one step further. If you don't know acting, it tells you what basic level of acting do you need to have to be able to start thinking about auditioning. So those are the two parameters which you should keep in mind. I'll now start the presentation because we are almost 5 minutes into the meeting, and I don't want to, delay others who actually joined on time. So having said that, Shivam, hi Shivam, thank you so much for joining. Hello everyone. Hi Dina. Hi. Thank you for such a beautiful introduction. So, Hello everyone. How are you guys doing? शिवम, I will share a presentation. एक PPT है जो बनाई है, मैं वो share करने वाली हूँ. That will allow me to introduce you also a little bit properly, ताकि लोगों को थोड़ा सा और पता चले आपके बारे में. I think most of them know you really well, but it is good to kind of थोड़ा सा और orientation हो जाएगा. I hope that's fine with you. I will share the presentation now. So it's being done by a platform called CineInfo. CineInfo as a platform is created for artists and members of the film industry, television, OTT industry. So
अगर आप प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, एडिटर, सिनेमाटोग्राफर, एनी ऑफ दीज, हम उन कैटेगरी के लिए, एंटायर कैटेगरी के लिए काम करते हैं. सो बीइंग अ पार्ट ऑफ सिनेइन्फो अलाउज यू टू ऑल्सो meet other aspects of the film and television OTT or the entertainment industry. So you're not just in the actor circle, you have a very large purview of other members. You can go to the website and you can see the categories that we have created, and you can definitely join the community to be part of that overall universe of the arts and entertainment industry. Having said that, moving to the next slide, which I would like to talk a little bit about Shivam. Shivam एक काफी accomplished casting director है, और उनकी एक कंपनी है शिवम गुप्ता कास्टिंग, जो 2018 में शुरू की गई थी. एंड ही असिस्टेड ऑन प्रोजेक्ट्स लाइक डैडी एंड ट्रैप. दैट्स हाउ ही स्टार्टेड. ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स इन द इंडस्ट्री. बट आप उनकी उम्र पे मत जाइए. उनके जो accomplishments हैं, they are really amazing. So he has a diverse team, and he also has a very large set of work which he has done. I personally call him the OTT king, because the number of content that he has done for different kinds of OTTs, whether it is Netflix, whether it is Sony Live, Prime, Hotstar, you name it, all of them. हर एक में शिवम का जो काम है वो हर एक में अप्रिशिएट किया गया है. देर आर जस्ट टू नेम अ फ्यू प्रोजेक्ट्स जो आज के डेट पे चल रहे हैं, लाइक पंचायत सीजन 4, स्पेस जनरेशन, एक फीचर फिल्म आ रही है कुरला बॉयज, वन ब्लडी नाइट, बल्ली, भैया जी, दहन, असुर, सीजन 2, चोक्ड, सिर्फ एक बंदा काफी है, ये काली काली आंखें. अगर मैं उनके सारे नाम बताना शुरू करूं तो फिर आई थिंक सेशन उसी में निकल जाएगा. सो वी आर वर्किंग विद समवन हु हैज बीन bringing new talent, new faces onto OTT as well as onto feature film very successfully for a very long time. And he has been doing that because he believes in looking for talent not just in India but also outside. So he has selected, as part of our previous workshop in Dubai, he has selected members and he has auditioned and he's in the process of casting them. Similarly, he's looking at starting his projects as well as casting for UK. इसीलिए हम ये वर्कशॉप यूके में कर रहे हैं. इट्स अ वेरी गुड वे टू स्काउट फॉर टैलेंट and to see if we can actually have you join as part of these kind of projects. Having said that, आज का जो session है will be taken by Shivam, and Shivam has recently been also appreciated with as part of the casting, as part of the OTT industry, on having done amazing work, and he was recently also appreciated on media as well. Congratulations, Shivam, for this. So यहाँ से वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द वर्कशॉप. जब हम वर्कशॉप के बारे में बात करेंगे, हम आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स मैं बता देती हूँ. सो बेसिकली लाइव वर्कशॉप है 5 days के लिए. 27 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक है. लोकेशन सिटी एकेडमी, हर्बल हिल, लंदन है. These are the details. We will send those details also to you. We already have half the batch almost full, so we have very few seats left. So it'll be good if you can register very soon. Having said that, program highlights के बारे में आपको शिवम बताएंगे. शिवम, over to you. Thank you, Dina. Thank you. Thank you so much for this beautiful introduction and the details. So hello everyone. I can talk in English and Hindi, right? Is it Yes, okay? please. Yeah, great. So who all are comfortable in Hindi and who all are comfortable in Hindi just can raise a hand. Hindi, English can be okay. Great, super. So guys, this workshop is mostly मतलब जैसे कि डीना ने बताया, is mostly about the auditioning process and the casting process, how it works in India or in Mumbai Bollywood industry. Because see again क्या है कि एक्टिंग तो हम सब कर ही रहे हैं. See, we all are actors in some other way. We are doing the part. But उससे पहले क्या होता है ना, उससे पहले there's a most important thing which is auditioning. And I think वो इस वक्त बेसिक है किसी भी चीज को आगे ले जाने के लिए एज एन एक्टर. तो क्या है, ये ऑडिशन प्रोसेस जो मैंने स्टार्ट किया था, इसके पीछे एक रीजन है, और हाउ मी एंड सिनेइन्फो joined this, collaborated actually, because in recent years
आई फाउंड इट कि जो एक्टर्स होते हैं वो अच्छे एक्टर्स हैं या बैड एक्टर्स, इज नॉट अबाउट द हाउ दे आर गुड और बैड, बट इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस व्हाट दे आर गोइंग टूवर्ड्स इट, राइट। तो क्या होता है कि मैं जब ब्रीफ करता हूँ या मेरी टीम ब्रीफ करती है या कोई भी कास्टिंग कंपनी ब्रीफ करती है, तो एक्टर्स क्या होते हैं कि चीजों को सुनते जरूर है या सुनते भी नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि सुनते नहीं है, एंड दे प्री प्लान्ड देयर विजन अबाउट द सीन, ठीक है, एंड दे दे स्टार्ट टू बेसिकली कि ऐसा होगा, ऐसी चीजें होंगी, और वो बहुत जल्दी भागने की कोशिश करते हैं सीन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें हुई, एंड देन जब हम लोगों ने ऑडिशन स्टार्ट किए, चीजें हुई, और एक्टर्स आर नॉट रेडी विद द स्क्रिप्ट्स और विद द सीन्स, है ना, दे आर जस्ट परफॉर्मिंग द लाइंस और दे आर जस्ट डिलीवरिंग द लाइंस, ठीक है, एज इन सच दे आर नॉट रेडी विद द कैरेक्टराइजेशन अबाउट हाउ टू बेसिकली ब्रेक डाउन द सीन, ठीक है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि हमारे पास पूरी डिटेल्स नहीं होती हैं, ठीक है, एक कैरेक्टर की या एक पूरा आर्क हमारे पास नहीं होता है, बट हमें इतना बेसिक डिटेल्स हमें पता होता है कि बेसिकली वो कैरेक्टर क्या करता है ना, उसकी जर्नी क्या है, आगे पीछे एज अ टीम बताती है, तो हम उतना तो हम जान पाते हैं, और कोई भी डायरेक्टर आपके उस क्योंकि उसको भी पता है कि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट, तो उसको भी पता है कि पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जितना आप परफॉर्म कर रहे हैं उतना हमें 100% परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। सो उसके पीछे मैं कह रहा हूं कि 50-60% भी अगर हमने उस चीज को अचीव किया, एंड देन 10%, 20% एक आपके को एक्टर आपके साथ होते हैं, 10% आपका जो एक कॉस्ट्यूम है या एक जो फील है अबाउट द कैरेक्टराइजेशन, वो वर्क करता है। मिनिमम 70% अगर हमने उसको अचीव कर लिया, 30% इट्स नॉट कि हमें 100% अचीव करना है, इट्स ऑल अबाउट टू सी हाउ यू आर डिलीवरिंग दैट सीन, हाउ कॉन्फिडेंस यू आर डिलीवरिंग दैट सीन, हाउ यू आर मेकिंग दैट सीन, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट दैट, बट हम उसमें भी लैक होते हैं, ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट रेडी वॉट द कास्टिंग डायरेक्टर विल टेल यू, बिकॉज क्या होता है कि हमने अपना एक परसेप्शन बनाया है, वी हैव मेड द परसेप्शन कि यार ये तो सीन ऐसे होगा, वी एंटर्ड इनटू द ऑडिशन रूम, एंड जब हमने ये बताया कि यार ये सीन ऐसे नहीं है, ये ऐसे परफॉर्म होगा, तो एक्टर्स, ऑलमोस्ट एक्टर्स क्या होता है, दे कांट ब्रेक दैट सीन व्हाट दे हैव एक्चुअली प्लान, दे वो अपने उसी उसमें खो जाते हैं, क्योंकि वो उससे निकल नहीं पाते, बिकॉज दे हैव प्री प्लान ऑल द इमोशंस, ऑल द, मतलब लाइक 1 2 3, ठीक है, बट ऑडिशंस आर नॉट 1 2 3 4 5 6, ऑडिशंस आर वेरी मच ऑफ स्पॉन्टेनिटी, राइट, बट स्पॉन्टेनिटी मीन्स वी, इट्स लाइक कि वी आर नॉट preparing the character, it means ki how it anything co-actor can also do in your scene or give it to you, so be ready with the scene ambience or scene environment, how the scene is going on. It's not about the ratta, because it's not an examination, right, मतलब ये एग्जामिनेशन नहीं है कि हमें हमें हम बस 10 बार रट लें सीन को और हो जाएगा परफॉर्म। बहुत एक्टर्स ऐसे होते हैं कि वो ऑडिशन के पर्पज से रट लेते हैं सीन, ठीक है, लाइन से याद हो जाए, बाकी तो इट विल बी डन, इट्स नॉट लाइक दैट। आई एम श्योर कि मतलब आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज कई एक्टर्स ऐसे होते हैं, दे डोंट नो हाउ मच टू रीड द सीन, हाउ मेनी टाइम्स दे हैव टू रीड द सीन, ठीक है। आई विल से फ्रॉम माय from my experiences, it's we have to read the scene minimum to minimum 60-70 times, just it like that, just like that, just not about प्री इमोशनली हम उसको कंसीव नहीं करें, ठीक है, मतलब अगर हम सिर्फ नॉर्मली भी 60-70 बार सिर्फ और सिर्फ बिना बोरियत के, क्योंकि हम बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं ना,
एज एन एक्टर्स, अरे यार पढ़ तो लिया, हो तो गया, 10 बार तो पढ़ लिया, अब कितना बार पढ़ना है यार, हो गया मुझे याद। याद नहीं करना है। द आइडिया इज वी हैव टू अंडरस्टैंड द सीन। द आइडिया इज वी हैव टू बेसिकली ब्रेक डाउन द सीन। The idea is to basically break down the every character. The like, it's not about you. It's all about the co-actor also. कि who is performing with you, who all are in the scene. If three are there in the scene, you have to understand the three characters. It's not about कि you have to understand your character because it's coming from like three point of views, right? तो एक तरीके से नहीं चल सकता। तो पर हम क्या होते हैं ना, हम एक्टर्स क्या होते हैं कि, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी कि बहुत अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है सिस्टम, बिकॉज वी आर ऑलवेज, मैं इस चीज को बताता रहता हूँ अपने ऑडिशंस में भी, जब भी हम लोग काम करते हैं, जब भी हम बात करते हैं, कि ये प्रोसेस नहीं है। हमें उस ऑडिशन को सक्सेसफुल नहीं बनाना है, हमें रेस्ट ऑफ द ऑडिशंस को भी सक्सेसफुल बनाना है। हमें, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस इट्स कांट बी डन, बिकॉज कि मैंने बता दिया और हमने उस वहां पर कर लिया, इट्स नथिंग लाइक दैट। वी हैव टू मेक इट इन अ रेगुलर एक्टिविटी। बट हमें पता सब कुछ होता है, बट हम कर नहीं पाते। हमें पता है कि ये करना है, हमें पता है कि एवरीथिंग शुड बी डन, कि हाँ ऐसे है, हमने सुना है ये है, बट हमें उसका राइट वे ऑफ मीडियम नहीं पता होता है। सो इट्स ऑल, द वर्कशॉप इज ऑल अबाउट दिस 4 days टू बेसिकली टॉक विथ यू, टू हैव दीज कन्वर्सेशंस विथ यू कि व्हाट टू डू। बिकॉज हमें एक दिन मिलता है ऑडिशन देने के लिए, या 2 दिन मिलते हैं ऑडिशन देने के लिए, बिकॉज इट्स फास्ट है, काफी कुछ चीजें फास्ट हो चुकी है। आज सुबह फोन आया, वी हैव टू गिव इट टुडे और बाय इवनिंग और बाय टुमारो अर्ली। ठीक है, बट कैसे होगा वो? या तो ऐसे होगा कि हम बस ऑडिशन याद करें और दे दें, या फिर ऐसे होगा कि हम उसको प्रैक्टिस करते रहे, और अगर हमारे पास ऑडिशन आया है तो हमें पता है कि उसका प्रोसेस क्या है, वी कैन गिव इट अ शॉट इन लाइक बाय इवनिंग, बिकॉज वी ऑल आर इन प्रैक्टिस। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे, हम ये है कि हम 15 दिन गाड़ी चलाना सीखते हैं, हम रेगुलर गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, हम रोज गाड़ी चला रहे हैं, हम रोज ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं आती है चलानी। अगर हमें थोड़ी भी आती है तो भी हम ट्रेनिंग लेते हैं, बिकॉज हमें उससे बचना है, एक्सीडेंट से बचना है। तो उसके बाद भी हम 15 दिन बाद भी हम धीरे धीरे उस चीज को परफॉर्म, मतलब गाड़ी चलाते हैं। 1 महीना होता है, 2 महीना होता है, पर ऐसा नहीं है कि अगर आप 3 साल गाड़ी चलाते रहोगे यू विल बी द बेस्ट पर्सन टू ड्राइव अ कार। कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। हम इंजन में गाड़ी में इंजन में ऑयल डालते हैं टू बेसिकली उस वो अच्छी चलती रहे। एज एन एक्टर हम भी इंजन ही है, हमें भी हर बार ऑयल डालना पड़ेगा। ऑयल कैसे? वी हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे सीन। ऐसा नहीं है कि आज ऑडिशन आया हम बस बैठे रहे कि हमारे पास ऑडिशन आएगा और हम बढ़िया कर देंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब हमें उसके लिए रेडी भी होना पड़ेगा, हमें उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि अगर आज ऑडिशन आया है तो हम उसके लिए रेडी हैं। बिकॉज कई बार ये होता है कि एक्टर्स के दिमाग में बस ऑडिशन नहीं आ रहा है यार, एक ऑडिशन आ जाए कर देंगे यार सीन, मतलब मजा आ जाएगा, हो जाएगा। होना तो है ही है, इट विल, बट वो या तो टाइम लेगा, या आपको कोई बताएगा कि भाई ऐसे नहीं होगा, या आपको उसके लिए तैयार होना होगा कि वो कभी भी आ सकता है आपके पास। मैं बेसिकली एज अ सीडी मैं हमेशा ट्राई करता हूँ, हमेशा कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं भी थिएटर बैकग्राउंड से आता हूँ, ठीक है। आई हैव डन थिएटर इन दिल्ली फॉर लाइक ऑलमोस्ट अबाउट 8 years नाउ, एंड आई एम ऑल्सो कंटिन्यूइंग टू डू थिएटर इन बॉम्बे। सो I'm now producing the theaters. I'm produced because I want to it continue in my life. ठीक है, तो क्योंकि वो छूट जाएगा तो मैं शायद, मुझे लगता है कि मेरा डिसिप्लिन छूट जाएगा, या मैं उस चीज से पीछे हो जाऊंगा, बिकॉज थिएटर ने मुझे काफी डिसिप्लिन चीजें दी हैं, कॉन्फिडेंस दिया है, कन्विक्शन दिए हैं, और मुझे हजार लोगों से कनेक्ट करने का, या बेसिकली एक परफॉर्मेंस करने का मौका दिया है।
मैं अब थिएटर नहीं कर पाता एज एन एक्टर बिकॉज नाउ आई एम प्रोफेशनल इनटू सीडी कास्टिंग। बट मैं चाहता हूं कि जितने भी नए एक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, मैं उस थिएटर के जरिए मैं उनको मौका दूं। अगर मैं उनको ऑडिशन नहीं कर पा रहा हूँ या मेरे लिए मेरे प्रोजेक्ट्स में उनके लिए काम नहीं आ पा रहा है, सो मैं कम से कम थिएटर से उन लोगों को देखता रहूं और चीजों को एक कंटिन्यू प्रैक्टिस में उनको डालता रहूं। आई ट्राई माई बेस्ट टू डू दिस। Recently, I have performed, like I have produced a play called Lassanwala, and I have taken minimum like 7 actors new into that theater play. We are again doing a more plays so that actors जो हैं उस जर्नी को कंटिन्यू करते रहे। अगेन इस ऑडिशनिंग वर्कशॉप में वी आर ट्राइंग टू से कि हाउ ऑब्जर्वेशन वर्क्स इन एन एक्टिंग, इन एन ऑडिशन ऑल्सो। बिकॉज सी क्या है कि आपके पास जो बेस्ट है ना, वो किसी के पास नहीं है। दिस समथिंग यूनिक इन योर पर्सनैलिटी एज एन एक्टर, एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग वी हैव, बिकॉज एज एन एक्टर वी हैव टू put it across in the auditions to make the audition unique. Because see, एक कैरेक्टर के लिए 20 लोग ऑडिशन देते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि एक कैरेक्टर के लिए 20 लोग ऑडिशन देते हैं, बट उन 20 का तो नहीं हो रहा है, राइट? हमें उन 20 में से हमें 5 शॉर्टलिस्ट करने हैं हु आर परफॉर्मिंग डिफरेंटली, बिकॉज एवरी एक्टर्स हैज अ डिफरेंट perception to basically perform by their unique abilities. How can they make the character different from all other actors? सीन भी सेम है, कैरेक्टर भी सेम है, बट इंसान सेम नहीं है टू बेसिकली परफॉर्म इट। या तो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें अपना बेस्ट 5 पॉजिटिव यूनिक पॉइंट्स नहीं निकाल पाएंगे। और हमें उसकी ना 5 अगर हम नहीं निकाल पाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि हम 10 ऑडिशन देने, हो जाएगा ऑडिशन, सिलेक्ट हो जाओगे, आप कर लोगे, बट हाउ टू मेक इट द बेस्टेस्ट ऑफ ऑल, ये ऑडिशन नहीं होगा। पर आपको ये तो पता है अच्छा हुआ है, मुझे मजा आया है अपनी कुछ पर्सनैलिटी यूज करने में इन द ऑडिशन, यू नो दैट। आपको वो पर्सनैलिटी से ना बहुत अच्छा आपको फील होगा, एंड यू कैन मेक इट like you can use it in other auditions as well, and that's what I am trying to put it across कि how it can be done। हमें अगेन मैं बोल रहा हूं, we know everything, we know how to do this। I'm honestly saying मैं बहुत कुछ अलग नहीं बता दूंगा आप लोग, ठीक है, बट I'll try my best to make it on a very practice level कि यार ये होगा कैसे हर रोज, how to crack it, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग सब लोग एक्सपीरियंस है, हम लोगों ने कई कई काम करके आए हैं। हम ऐसा नहीं है कि आज ही उतर के आज ही हम लोग चीजें कर लेंगे, बट इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस एंड द बेस्ट वे, द राइट वे टू मूव फॉरवर्ड। मैं आज भी कास्टिंग करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार एक अगर प्रोजेक्ट या कुछ आ गया है, ये कैसे होगा, ये तो मतलब मुझे लग रहा है कि होगा, बट अगेन मैं कह रहा हूँ कि इट देयर इज एन एक्सपीरियंस, इज समथिंग व्हिच आई थिंक इट कैन बी डन इन अ वेरी सर्टेन वे, बट उस सर्टेन वे के लिए मुझे उसको खोदना पड़ेगा, डाइव इन करना पड़ेगा टू मेक इट द बेस्ट। क्योंकि हर प्रोजेक्ट सेम नहीं हो सकता, या हर एक्टिंग या हर कैरेक्टर सेम नहीं आ सकता। आपको भी मजा नहीं आएगा ना कि पुलिस वाला मैं कर रहा हूँ और ठीक है यार, मतलब पता चला 3 फिल्मों में पुलिस वाला कर लिया है, अब वो सेम ही हो रहा है। बट अगेन मैं कह रहा हूँ एज एन एक्टर, अगर पुलिस वाला आ भी रहा है, हाउ यू हैव टू मेक इट डिफरेंटली, यू हैव टू थिंक। जो डायरेक्टर ने तो लिख दिया या राइटर ने ही लिख दिया, डायरेक्टर ने विजन बना लिया है, बट एज एन एक्टर इट्स योर कॉल टू मेक इट डिफरेंटली एंड टू कम अप विथ समथिंग न्यू, टू मेक इट डिफरेंट। एंड डायरेक्टर भी ब्लोन हो गया, यार ये तो सही है, बड़ा मजा आएगा यार, इसको करते हैं। हो सकता है वो यूज ना हो, बट
थिंक इट लाइक दैट कि उस डायरेक्टर ने उस विजन, आपके उस चीज को एक्सेप्टेंस दी है। टेक इट लाइक दैट। कितने भी मेथड्स, कितने भी चीजें आप सीख लो, कितने भी चीजों पे आप काम कर लो, आपका प्रैक्टिस नहीं है ना, तो सेट पे कितना भी मेथड लगा लो आप, कुछ काम नहीं आता है। सबसे जरूरी काम आता है आपकी स्पॉन्टेनिटी, आपका कन्विक्शन एंड आपकी प्रैक्टिस। हर रोज आप कितना काम कर रहे हो। हम हर रोज कुछ ना कुछ काम करते हैं, बट एज एन एक्टर हम अपनी चीजों को भूल जाते हैं कि हमें कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है। क्योंकि ये भी जरूरी है ना एज एन एक्टर। अगर हमें इसको आगे बढ़ाना है, अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं, तो ही हम इसको ठीक से सोच पाएंगे। थिएटर की एक अलग जर्नी है। वो वाला डूइंग थिएटर बेस्ट है, मतलब वो आपको एक अलग तरीका एज अ परफॉर्मर देती है। बट मैं कह रहा हूँ एज अ फिल्म इन अ कैमरा स्पेस, देयर इज डिफरेंट टेक्निक्स टू परफॉर्म। देयर इज डिफरेंट टेक्निक्स टू बेसिकली करेक्ट द ऑडिशन। आई एम नॉट सेइंग, अगेन आई एम सेइंग, फेलियर, हर ऑडिशन फेलियर हो सकता है। इट्स नथिंग कि यार रिजेक्शन इज द बेस्ट थिंग। उसको हमें ऐसा नहीं लेना है कि यार इस ऑडिशन में भी नहीं हुआ, उस ऑडिशन में भी नहीं हुआ, बहनचोद 10 दे दिया ऑडिशन। नहीं, वी हैव टू, हमें उसको तरीके से सोचना होगा कि हमें उसको यार अब क्या गलती हुई है, हमें उसको फीडबैक के तौर पे देखना पड़ेगा। और सी अगेन मैं बोल रहा हूँ, हम ऑडिशन देते रहेंगे, हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी, बट हमें ऐसा नहीं कि हमें उसको एक ही मोनोटोनस वे में डाल दिया कि अरे ऑडिशन दिए चले जा रहे हैं, होगा देखा जाएगा। ऐसा नहीं करना है। हमें उसको ऐसा फीडबैक लेना है कि यार उससे मेरी गलती क्या हुई। उस गलती से आपको अपने से ही आंसर करना पड़ेगा। नहीं तो आप चलते चलो, वो एक मोनोटोनस लाइफ है, और फिर आप अपने आप को फ्रस्ट्रेट होते चलो कि हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, इतना ऑडिशन दे दिया, होता ही नहीं है। तो हम सब लोग मिलके उस पे काम करेंगे कि यार बिकॉज एवरी पर्सन कैन टेक इट फ्रॉम एवरी पर्सन, लाइक हम हर एक इंसान से सीख सकते हैं कि उस एक्टर का एक अच्छा पॉइंट आप ले सकते हो उस वर्कशॉप में, और उसको यूज करके देख सकते हो। हम लोग सीन वर्क पे काम करेंगे। मैं आपको सो लाइक अगेन, there's a very legendary filmmaker Supan is also joining us in this workshop. And me and Supan has worked on a different various projects, and recently we worked on बंदा, सिर्फ एक बंदा काफी है। uh, हम लोग मिलके आपको सीन देंगे, और हम लोग बताएंगे कि बेसिकली हाउ टू करेक्ट द सीन इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन। सीन के जो हिडन पॉइंट्स होते हैं, हमेशा हिडन पॉइंट्स नहीं लिखे जाते हैं। हमेशा हर एक चीज नहीं मिलेगी आपको एक ऑडिशन सीन में। हमें उसको खोदना पड़ेगा कि बेसिकली ये कहाँ है और कैसे निकलेगा। लाइनें इज नॉट अ वे टू बेसिकली डिलीवर द सीन। देयर इज ऑलवेज अ लॉट टू डिलीवर द सीन। हम लोग ब्रेथ पे बात करेंगे, बिकॉज एज अ कैरेक्टर एवरी कैरेक्टर हैज अ डिफरेंट ब्रेथ। लाइक हर एक कैरेक्टर की अपनी एक डिफरेंट ब्रेथ है। और मुझे लगता है एज अ सीडी, मुझे लगता है कि ब्रेथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कैरेक्टराइजेशन में। जहां ब्रेथ ऊपर नीचे हुई, वहां आपका कैरेक्टर भी छूट जाएगा। यू विल लीव द कैरेक्टर, बिकॉज इट शुड बी इन सिंक। आपके हाथ कहीं चल रहा है, ब्रेथ कहीं चल रही है, कैरेक्टर कहीं और चल रहा है, तो कैसे हम उसको एक सिंक में डालेंगे। मैं अगेन बोल रहा हूँ, 100% नहीं हो सकता कुछ भी, कम से कम वी कैन ट्राई इट 50%, एंड स्लोली ग्रेजुअली वी कैन रीच इट टू 70%। और जब सीन और हर एक चीज एक अच्छे तरीके से बुन जाती है ना, तो सब कुछ सिंक में आ जाता है। बट अगेन उसके लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। मरने का सीन है, रोने का सीन है, हर एक कैरेक्टर की अपनी एक ब्रेथ है। वी हैव टू सिंक इट विद इट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि
ऑडिशंस में क्या होता है, बहुत बार होता है कि एंजाइटी, नर्वसनेस, उससे पहले, ऑडिशन से पहले कि अगर मैं भूल ना जाऊं, यार मेरे को डायलॉग्स याद है, इतना कुछ चल रहा होता है ना माइंड में, उस 5 मिनट ऑडिशन से पहले, उस 1 मिनट सीन के लिए या 2 मिनट सीन के लिए। क्योंकि अगर वो रिलैक्स नहीं हुआ ना, ब्रेथ अगर काम नहीं हुई, ऑडिशन विल नॉट फॉल इनटू द प्लेस। बिकॉज वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड, ब्रेथ को कामनेस की बहुत जरूरत है उस एक ऑडिशन 1 मिनट के सी। नहीं तो वो दिमाग में चलता रहेगा, लाइनें चलती रहेंगी, इसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। एक आदमी ने सामने से इम्प्रोवाइज कर दिया तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द सीन फॉर दीज 2 मिनट्स। मैं तो कहता हूं कि जब से आपने एक ऑडिशन रूम में एंटर किया है एक ऑफिस में, यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू बी देयर। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अरे वो अच्छा ये भी आया है, वो ये भी देता है ऑडिशन, यही दिमाग में हमारा लग जाता है काम। हम अपने कैरेक्टर जो करने आए हैं वो भूल जाते हैं। आई डोंट नो हाउ इट वेंट इन द वेस्ट, कैसे होता है मुझे नहीं पता, बट यहाँ आई ट्राई कि ऐसा ना हो। बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ स्टार्ट। हम सब लोग एक ऑडिशन के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग सब लोग अच्छे काम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और अगर हम अच्छा काम करने की कोशिश में है तो हमें अच्छे से उसका पाथ हमें खुद को क्लियर करना पड़ेगा। दैट्स ऑल वी कैन डू टुगेदर। बिकॉज इट्स नॉट ए इंडिविजुअल गेम कि मैंने आपको बताया और आपने किया। इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक। गिव एंड टेक नहीं होगा ना तो मैं क्या, मतलब मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, डायरेक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। बिकॉज मेरे, आपके बिलीफ पे मैं चलता हूं और मेरे बिलीफ पे डायरेक्टर चलता है। सो आई एम द सेंटर कड़ी ऑफ दैट ऑडिशन और दैट लॉकिंग द कैरेक्टर और लॉकिंग द एक्टर। मैंने आपके साथ 5 टिक तो यहां करके एक अच्छा टिक करा लूंगा, बट सेट पे तो आप ही होगे ना परफॉर्म करने के लिए, मैं वहां कुछ नहीं कर पाऊंगा। वहां आपको ही परफॉर्म करना है, और जहां आपने वहां गलत परफॉर्मेंस किया या कुछ भी ऐसा, आप एकदम से घबरा गए, और ऐसा नहीं है कि 5 फिल्में कर ली, अरे ये तो मेरे हाथ का खेल है, यू नेवर नो यार, कहाँ ब्रेक हो जाए, यू नेवर नो इट। कहाँ आपको लगेगा यार मैं नर्वस हो गया, इतने कुछ भारी सामने ओवर पावर हो गया, तुरंत ब्रेक होता है सिस्टम। और फिर उसके बाद 2 टेक के बाद, 3 टेक के बाद आपको समझ नहीं आता है क्या करना है, बिकॉज देयर 100 पीपल हु आर एक्चुअली आइंग टू यू। सो कैसे होगा वो, वी हैव टू वर्क ऑन दैट। हमें उस पे काम करना पड़ेगा। सी अगेन मैं कह रहा हूँ, जितने भी सक्सेसफुल एक्टर्स हैं, जितनी भी सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस हैं, आज नहीं बन गए वो लोग, आज आए और आज नहीं हुआ। दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट एवरी डे टू मेक इट हैपन, और आज भी वो ट्राई कर रहे हैं टू मेक इट बेस्ट एवरी डे। हम एक फिल्म, एक सीन देखते हैं, हमें लगता है वाह क्या सीन है यार, हम तुरंत बोलते हैं यार इससे तो मैं कनेक्ट कर गया यार, ये तो बढ़िया सीन था, दिस इज वेरी गुड सीन। और हम ही वो लोग होते हैं जो बोलते हैं यार ये बकवास सीन था यार, क्या कर रहा था वो एक्टर। सामने वाला आदमी भी आपको ये बोल सकता है इफ यू आर ऑन दैट स्क्रीन। नाउ वी हैव टू चूज व्हाट वी आर डूइंग देयर, नहीं तो कट जाएगा, डायरेक्टर काट देगा, डायरेक्टर को कोई मतलब नहीं है। रिसेंटली मैं आपको एक जस्ट एक रिसेंट एक सिचुएशन बताता हूँ, बिकॉज दैट्स नॉट माई फॉल्ट ऑल्सो एंड दैट्स नॉट द डायरेक्टर फॉल्ट ऑल्सो, दैट्स अ direction team fault. We were doing a project where we have to cast real characters. We have to find out the actors who can look like them
They're the foreigners who are actually the real people, and we have to look Indian looking foreigners. Now the direction team hasn't sent us the real images. They just sent us the brief without the real images or without the real clips, how they perform in their real life. We started the casting, we started the whole process. It went on for 4 days. At the last day, when tomorrow is the shoot, and today at 2 a.m., producer called me. What is happening? Why we can't lock the cast? Producer asked me, what you got? I told him, this is I've got as a brief. Guys, all the night, because there's a small mistake, they have not sent us the real images. They have not sent the real clips of that persons. That's a small fuck up, but it's a big fuck up. Because how we will cast? We are doing that, जो भी लगता है इंडियन फॉरेनर्स हम दे रहे हैं उनको. तो इस जल्दबाजी में क्या हुआ, हमने कास्ट तो कर दिया, रात भर बैठ के, सुबह शूट है 10 बजे. आसान काम नहीं है कास्टिंग वालों का. हमने रात भर लोग ढूंढे, सुबह हम लोगों ने उनको भेजा, हो गया. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि एक तो ये कि कभी भी कुछ भी हो सकता है. कभी भी आपको रात में, दिन सवेरे, आधी रात कॉल आ सकते हैं. ठीक है. सो लाइक यू नेवर नो, बिकॉज इट्स अगेन स्पॉन्टेनिटी की मैं बात कर रहा हूं, है ना. सेकेंड थिंग, व्हाट वी हैव कास्टेड, क्योंकि इस 1 घंटे और 2 घंटे, इस रात के इस 3 घंटे में स्ट्रेच में हमें नहीं पता कि हम कौन सा एक्टर कहाँ दे रहे हैं. हमें लगा कि भाई ये सही लग रहा है, हम बस अब देते जाओ जैसा ये लुक है, बिकॉज वी हैव टू क्रैक इट. वो एक्टर हमने कास्ट किया, ही इज ऑन द सेट, he shot the scene, director rejected him, he sat for 3 days and he didn't shoot it. Why? Because director thought it कि आज नहीं हो रहा है, कल कर लेगा, कल कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा ले लेंगे. अब कास्ट तो हो गया, यू हैव टू शो हिम थोड़ा थोड़ा इमेज में. तीसरे दिन हुआ, वो बैठा रहा भाई 3 दिन, उसका शूट नहीं हुआ, थोड़ा 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 हुआ. मैं एज एन एक्टर की भी बात कर रहा हूं कि जस्ट वो उठा और चला गया सेट पे. ही डिडंट प्रैक्टिस इट. अगर इट्स अ वेरी नॉर्मल सीन, दे आर डूइंग इट, दे जस्ट हैव टू डिलीवर द लाइंस. बट वो भी नहीं कर पाया. हम ये नहीं कह रहे कि हम नहीं कर पाएंगे, हम ये बोल रहे हैं कि अगर वो प्रैक्टिस कर रहा होता एज एन एक्टर, हर रोज अपने सीन्स पढ़ने की भी, मैं कह रहा हूं कुछ भी पढ़ने की, और अगर वो ऑनेस्टली ऑडिशंस दे रहा होता, तो ये हो जाता. यहां मेरी भी गलती है कि मैंने रिसर्च नहीं की, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिला. अब मैंने तो उसके बिलीफ पे किया ना, और डायरेक्टर ने मेरे बिलीफ पे काम किया. आई एम सेइंग वी ऑल आर इनटू दिस सिचुएशन, वी ट्रायर पार्टी वर्क्स इन दिस, so we have to be ready, we have to be the best what we can do in the audition, and it's all about that. एक ऑडिशन, एक अच्छा ऑडिशन ट्रेवल करता है हर एक ऑडिशन, हर एक कास्टिंग डायरेक्टर के पास. मतलब बेकार होगा तो मैं तो नहीं बोलूंगा ना. अगर रैंडमली कहीं से भी आपको कॉल हो रहा है, तो आप सोचो कि कहीं से कहीं ऑडिशन आपका ट्रेवल किया हो, किसी ने बताया होगा आपके बारे में. मैं ऐसे बहुत करता हूँ, और एक्चुअली हमारी जो कम्युनिटी है वो इस पूरे गेम को करते रहते हैं हम लोग. जैसे दुबई हम लोग गए थे अभी, मैं लाइक विद द सेम इन्फो आई वेंट टू दुबई फॉर दिस वर्कशॉप ओनली. सम एक्टर्स आई हैव टोल्ड टू अदर कास्टिंग डायरेक्टर्स कि यार ये मैंने कुछ दुबई में फाइंड आउट किया है, ये कुछ एक्टर्स हैं जो तुम लोग ट्राई कर सकते हो. अब
मैं नहीं जाता तो मुझे नहीं पता लगता, मैं उन नए एक्टर्स को नहीं फिगर आउट कर पाता कि ये लोग भी हैं इंडियन एक्टर जो दुबई में काम कर रहे हैं। हम, मेरी टीम, उनको रेगुलरली हम कहीं ना कहीं उसको ऑडिशंस कर रहे हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि जो मैंने बताया है कम से कम वो प्रैक्टिस में तो करते रहें जो हमने बताया है। इसी बहाने उनको शायद मोटिवेशन नहीं मिलेगा, बट कम से कम हम मोटिवेट करते हैं उनको कि भाई रुकना नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द स्क्रिप्ट, how to break down the characterization, how to break the character, how to find out the hidden gems in the scene, how to find out like about the improvisation techniques, how you can be more spontaneous in the audition also or on the set also. Because again, it's a give and take theory. You can't do individually the scene. You have to be with the co-actor, sink in. एंड अगेन ये सारी चीजें हम 3 दिन के बाद, चौथे दिन या 5वें दिन जो भी हमारा होगा, हम सीन परफॉर्म करेंगे विथ द को एक्टर्स एंड यू विल सी व्हाट change you will like. I'm not saying from here, like I've experienced it in like many workshops कि what change from first day to the 5th or 4th day they get in after the scene work. Because always we are waiting for the audition, but in 4 3 days we try to, or I try to basically convey my experience or my uh, idea how to basically crack or how to do audition scene. Because again, I'm saying I'm not coming to basically teach you the acting. I'm trying to basically teach you or basically convey as a team to how to prepare for the audition. See, again, there is always a thing. There is a West or there is a Bollywood. Audition process is almost the same, right? I feel कुछ भी अलग तो नहीं होता होगा। वो सीन मिलता होगा, कैरेक्टर मिलता होगा, यू हैव टू ब्रेक डाउन द कैरेक्टर, यू हैव टू परफॉर्म द बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। और ये दोनों जगह काम होता है ना। इट्स नॉट हम कि हम बॉलीवुड की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, और ना हम किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं। हम एक एक्टर स्पेस में हाउ टू गिव द बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। वो कहीं भी हो सकता है। तो बस हम उस चीज को बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्रस्ट मी, जब हम सब मिलेंगे ना वहां पर, इन दैट इन दैट स्पेस, देयर इज अ मैजिक गोइंग टू हैपन विथ यू ऑल। मतलब मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। ऑनेस्टली आई एम सेइंग, जेन्युइनली आई एम सेइंग, देयर इज समथिंग विच यू विल गेट टू नो एवरी डे, एंड यू विल see the change at the 4th or 5th day, how मैं कुछ भी हीरो नहीं बना दूंगा या मैं कुछ ऐसा नहीं करने वाला हूं, बट यू विल सी इन योर पर्सनैलिटी और एज एन एक्टर व्हाट चेंजेस यू हैव गेन। काम आप पहले भी कर रहे थे, ऑडिशन आप पहले भी दे रहे थे, अब शायद जो ऑडिशन दोगे वो एक बेटर तरीके से दे पाओगे। वो बेटर एक एक जो मैं आपको बताऊंगा उस बेटर तरीके से दे पाओगे। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। दे विल बी अ चेंज, लाइक आप शायद यहाँ दे रहे होगे, मैं आपको शायद उस वर्कशॉप के बाद मैं यहाँ आपको, हो सकता है मैं आप यहाँ तरीके से ऑडिशन दे पाओ। सो हम उस सब चीजों पे चौथे 5वें दिन जो भी 5 days की वर्कशॉप है, हम उसमें ये बात करेंगे। ये बात एक दिन में भी हो सकती है, बट मुझे पता है कि एक दिन में बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ है देने के लिए, और सीन परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि जब 12 14 15 लोग मिलते हैं ना एक साथ, एक ग्रुप बनता है। उस ग्रुप से वी टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम ईच अदर, अ लॉट ऑफ good experiences from each other, and a lot of unique activities or unique personalities or unique um, things we take from each other actors, so that we can use it into our performances to make it
out of the box. That's all the director is seeing, bhai. That's all the director is want to see कि how this actor is different. और इसने इस पॉज में या इस सीन के जो पॉज हुआ है इसमें अगर ये साइलेंट भी है ना तो क्या कर रहा है. बिकॉज डायलॉग अगेन इसका एक और दूसरा हिस्सा है कि डायलॉग बोलना आसान है, साइलेंटली परफॉर्म करना उतना ही डिफिकल्ट है. एज एन एक्टर्स हम लोग बेसिकली साइलेंस से अच्छा ऐसे खड़े रहते हैं, अच्छा ऐसे खड़े रहते हैं, अच्छा इनका डायलॉग हो जाएगा फिर विल परफॉर्म, अच्छा ओके. अगेन इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू बी इन द सीन एज अ साइलेंट एक्टर. बिकॉज हमें नहीं पता हमें करना क्या है, उन 5 लोगों के बीच में हम खड़े हैं. मैंने एक फिल्म की है, दिट्स अ म्यूट फिल्म विच इज दिस नो डायलॉग ओनली द एक्सप्रेशन, 20 minutes फिल्म. एज अ सीडी आई वॉज लाइक, आई वो जस्ट हाथ जोड़ रहा था मैं डायरेक्टर की, भाई अब हो गया है मेरे से. बिकॉज इट्स नॉट एन इजी थिंग टू बेसिकली करेक्ट द ऑडिशन विदाउट एनी डायलॉग. और फॉर एक्टर ऑल्सो, फॉर मी ऑल्सो, इट्स गिव एंड टेक थिंग. Because we have to give the situation, we have to, because everything is in the mind ना. यहां चलेगी पहले कोई चीज, you have to work it here, then यहां चलेगी वो चीज, प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस से वो चीज यहां चलेगी इनटू द आईज. और जितना वो चीज ऑनेस्ट होगी, जेन्युइन होगी, वही सीन डिलीवर कर पाएगा. इमोशंस, एक्सप्रेसिव, एज एन एक्सप्रेसिव एक्टर. और ये आंखें ना झूठ नहीं बोलती कभी भी. Eyes are the most honest thing as an actor you can see. हम एज एन हम बोलते भी हैं कि यार इसकी आंखों में कुछ बात था यार, मतलब कुछ भी हो, मतलब आंखें बोल रही थी इसकी. जैसे हम इरफान सर के लिए बोलते थे, वो कुछ भी परफॉर्म करते थे बट आईज से अ लॉट. मैं कह रहा हूँ आंखें बहुत जरूरी हैं एज एन एक्टर टू एक्सप्रेस अ लॉट. बिकॉज कैमरा कैप्चर करता है सब कुछ. ऑनेस्टी, कितना आप सीन में हो कितना नहीं हो, एवरीथिंग इट कैप्चर्स. कितना आप सीन से बाहर निकल गए, फिर सीन में आ गए, अब कब डायलॉग बोल दे रहे हो, कब कुछ सोच ही नहीं रहे हो, दिमाग कुछ चल ही नहीं रहा है, खाली है. ये सब कैप्चर होता है. बट अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये सब हमें पता है, बट हाउ टू पुट इट इनटू द राइट वे कि चले. यहाँ चलना बहुत जरूरी है. अगर यहाँ नहीं चलेगा ना कुछ भी, भाई मैं कह रहा हूँ अगर एक एजेंट का भी सीन है ना, फालतू नहीं है वो आदमी. फालतू है क्या? नहीं है ना फालतू. कुछ तो कर रहा होगा ना सीन में, कुछ तो राइटर ने सोच समझ के लिखा होगा ना सीन कि भाई एजेंट है, कुछ चल रहा होगा दिमाग में, कुछ एक्टिविटी हो रही होगी, कुछ उसको पता होगा कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है. डायलॉग ही बोलना काम नहीं है. इट्स नीड्स टू बी अवेयर. ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं दैट वी नीड टू रियली रियली वर्क ऑन इट. और जब ऑडिशन आता है तो ये छोटी छोटी चीजें ही मिस हो जाती हैं, जो कि छोटी छोटी चीज ही इस ऑडिशन को बेस्ट बना सकती है. दिस ऑल अवेयरनेस, दैट्स ऑल आई वांट टू कन्वे. What we will be basically learning and collaborating, learning from each other, how we can make it the best to rest of the auditions you are going to perform. Any questions you want to ask? So, शिवम, ये भी था, we'll move to the Q&A immediately now. ये भी था कि सब participants को we will be giving them a workshop showreel. तो वर्कशॉप शोरील आपके नॉर्मल शोरील से थोड़ा अलग होता है, बट जो लास्ट डे पे, मतलब जो हम लोग सीन परफॉर्म करेंगे, वो करेक्ट हम लोग सीन परफॉर्म जो करेंगे वो रिकॉर्ड होगा. जी, और वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, वो रिकॉर्डेड वर्जन आपको दिया जाएगा टू सी व्हाट यू हैव डन.
जी एंड यू कैन ऑल्सो, बिकॉज ये अगेन मैं कह रहा हूँ कि वो रिकॉर्डेड वर्जन आप एज अ ऑडिशन लिंक भी तैयार कर सकते हो, बिकॉज हम उस पर मेहनत करने वाले हैं। कुछ भी ऐसे ही नहीं करने वाले हम लोग कि हमने किया और हमने डाल दिया। हम लोग चौथे दिन जो भी हमें होगा, हम उसको पहले प्री सीन होता है, हम उस पर परफॉर्म करेंगे विदाउट रिकॉर्डिंग। इन फिफ्थ डे हम लोग बेसिकली उसको रिकॉर्डेड वर्जन में प्ले करेंगे, सो दैट जो हमारी चौथे दिन गलतियां हुई हैं वो पांचवें दिन हम लोग उसको सुधारें, जो ना करें, और उससे बेहतर क्या कर सकते हैं। अपने को एक्टर के साथ बताए जितना समय हम लोगों को मिलता है ना, मतलब मैं कह रहा हूँ वो और सुंदर हो जाता है टेस्ट आपका, क्योंकि यू गेट टू नो योर को एक्टर लिटिल बिट, कि आप उसके सीन में उसको और कैसे यूज कर सकते हो। सी यही है तरीके टू मेक इट द बेस्ट। यस। Right. So this is basically what we are talking about. And we have a few members from London. In case you have any questions, you can call up these numbers. आप इसका screenshot ले सकते हैं, or you can reach out to us as well. And last date for registration is 10th September. Please don't miss it, because after 10th, we will not be able to take up any more registrations. So this is this. And now quickly moving to the Q&A. It'll be great अगर आप सब अपने videos on कर लें, because we have a small group of people, so we can actually take up everybody's questions. I'm Hope going guys I have actually conveyed you what I really want to, basically I'm trying to say. I hope that I try to convey you कि क्या हम लोग करने वाले हैं साथ में। So each one of you can raise your hand. I will try and accommodate everybody's questions. जिन जिन का question है, please हाथ raise करिए, either visually or on Zoom, and we can take up your questions. This is the youngest actor in the Yes. uh, Hi. He has Mohammad a Fahim. question. Right. Hi. So in case you have any questions, please do put it on the chat, or you can also raise your hand. Any questions from anyone? We are taking up questions now. Okay, great. Mohammed, Yes, Fahim. unmute you. Yeah. Okay, go ahead. हेलो शिवम। Hi, hi. हाय। यहाँ पर नॉर्मली बहुत सारी ना वर्कशॉप्स होती रहती हैं। पीछे कुछ टाइम पहले मुकेश सर भी आए थे, लोगों ने उनकी वर्कशॉप्स भी ली हैं। फिर आलोक सर आए थे, लोगों ने उनकी वर्कशॉप्स भी ली हैं। तो मैंने काफ़ी लोगों से बोला जो मेरे साथ थिएटर करते हैं, जितेंद्र भाई भी हैं मेरे साथ थिएटर करते हैं, तो हम एक ही ग्रुप में करते हैं। तो लोग मुझसे यही पूछ रहे हैं कि इसमें क्या अलग है। यार इसमें अलग ये है कि बेसिकली लोग जितना भी मैंने सुना है या आप लोगों ने भी किया वर्कशॉप, एवरीवन टॉक्स अबाउट द वर्बल कन्वर्सेशंस। दे टॉक अबाउट कि बेसिकली कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, है ना, कैसे कर सकते हैं बेस्ट। विल टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल स्पेस, विल परफॉर्म द सीन्स, विल टॉक अबाउट द सीन्स, हाउ टू बेसिकली segregate the lines or the segregate the characteristics। सी सब लोगों के अपने मेथड्स हैं, ठीक है। सब लोग बेसिकली स्टेनलेस की मेथड बताएगा आपको, एवरीथिंग एवरी मेथड आपको टॉट करेगा कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे, एक्टर की तैयारी ऐसे होती है। बट अगेन आई एम सेइंग, आई एम हियर टू बेसिकली एक्सप्लेन यू और टू बेसिकली गिव यू द बेस्ट थिंग कि आप ऑडिशन में कैसे बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। वही। हम लोग सीन वर्क पे बात करेंगे। सो आई एम नॉट हियर कमिंग कि आलोक सर, अगेन मुझे पता है वो ऑडिशन एक्टिंग की वर्कशॉप दे रहे हैं। हाँ, आलोक सर आए थे, मैंने भी ली थी। है ना। आलोक सर हमारे साथ ही थे, हाँ, हाँ। तो वो एक्टिंग की वर्कशॉप देने आए थे कि भाई एक एक्टर को कितनी अच्छी और एक्टिंग कैसे कर सकता है वो, हम्म। ठीक है, टेक्निक कैसे होती है, क्या क्या बेस्ट टेक्निक मिल सकती है ना। हम्म। मैं दोस्तों, मैं कुछ भी ऑडिशन, मैं आपको एक्टिंग सिखाने हो ही नहीं रहा है, मैं आपको जो आप करते हो, जो आप हम्म। एक्टर हो, हम्म। मैं उसको बेस्ट करने के लिए आ रहा हूं कि आप उसको कैसे अच्छे ऑडिशंस में फिगर आउट कर सकते हो। बिकॉज आई थिंक द बेसिक लेवल इज टू ऑडिशन। हम्म। एक्टर आप कितने भी अच्छे हो जाओ,
ऑडिशन में ना सब लोग एक साथ एक ही लेवल पे होते हैं, अच्छा हो या अच्छा एक्टर हो या अच्छा बुरा एक्टर। सही। अच्छा एक्टर भी उसी सीन को दे रहा होगा और बुरा एक्टर भी वही सीन कर रहा होगा, राइट। बट द आइडिया इज कि वो अच्छा एक्टर क्या एक टेबल पे लेके आ रहा है, बुरा एक्टर भी अच्छा कर सकता है अगर उसको अच्छी चीज या अच्छे तरीके से उसको बताया जाए कि करना कैसे है। बुरा एक्टर और अच्छा एक्टर कुछ नहीं होता है, द आइडिया इज कि उसको राइट वे नहीं पता होता है कि उसको करना क्या है। हम सब बेसिकली ऐसे ऐसे हम लोग हवा में तीर मार रहे होते हैं, सही। ये भी अच्छा है इसको ऐसे करके देखते हैं, ये भी अच्छा है इसको ऐसे करके देखते हैं। उसके हर एक तरीके के बेस्ट वर्जन्स हो सकते हैं, वेरिएशंस हो सकते हैं। एक आपका वेरिएशन हो सकता है, एक मेरा वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि एज अ सीडी आई एम वर्किंग विद द क्लोजली टू द डायरेक्टर। उसको ऑडिशन में क्या चाहिए, राइट। तो मैं ये मना नहीं करूंगा कि यार आप अपना वर्जन मत दो, बिल्कुल दो। हो सकता है मेरे वर्जन से आपका बेस्ट वर्जन हो, या मैं आपके वर्जन से, एक डायरेक्टर आपके वर्जन से जो उसका वर्जन है उसको सिंक इन कर पाए कि यार ये यहां से लेते हैं, इस कैरेक्टर में डालते हैं। एक्टर कॉन्फिडेंट है, स्मार्ट है, हम्म। स्ट्रीट स्मार्ट, बिकॉज एज एन एक्टर वी हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, राइट। तो बस हम्म। हम इस वर्कशॉप में अलग कुछ ये सीखने वाले, दैट्स ऑल आई वांट टू से। सही। और इसके बाद आप कुछ कास्टिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट जी की? मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, मतलब एक क्या मतलब एक्चुअली वी हम लोग 3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जो कि यूके में सेट हैं, विच इज हम्म। कॉल्ड, वन इज कॉल्ड ब्लडी नाइट, which हम्म। we are going to start in October. It's a Netflix film. And there's a film called Balli, which stars Manoj Vajpayee, सही। and which we are again shooting in London next year, early next year, which is again a Netflix original film. हम्म। And there's a web series which is again in development right now, but it's an Amazon show which we are going सही। to perform like shooting in Scotland, Edinburgh, and like most of the places here. So नॉट में। yeah, and that's the idea when actually Dina actually told me about this कि यार मैं ऐसा कुछ प्लान कर रही हूँ, तो मैंने भी यही सोचा कि यार बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां से हम लोग ढूंढ लेते हैं, नथिंग हाँ उसमें हाँ। कोई डिफिकल्टी नहीं है। द आइडिया सही। इज कि हम अगर मैं अगर जाऊंगा और मैं कुछ अभी करने वाला हूँ, उसमें होता क्या है कि यार मैं हम लोग सब साथ में हम एक दूसरे को देख सकते हैं, 1 to 1 हम बात कर सकते हैं, मुझे ज्यादा पता लग सकता है कि यार कौन एक्टर कितना अच्छा है, किस पे और काम किया जा सकता है। तो हमारा हम्म। एक एक डायरेक्ट टच हो जाता है। तो हम्म। मुझे बेसिकली मुझे किसी भी एजेंट के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, वी कैन ऑल हैव अ लिंक टू दिस हम्म। वन ग्रुप दैट्स कॉल्ड सिनेइंफो, सही। राइट। तो हम जहां भी जाएंगे, जिस तरीके से भी हम लोग ऑडिशन करेंगे, हम सिर्फ सिनेइंफो से सीधे हम लोग बात कर सकते हैं और हम लोग ऑडिशन दे सकते हैं वहां से। बिकॉज अगेन मुझे पता है कि यार इस एक्टर पे हमें इतना काम करना है, इस एक्टर को इतना करना है। सो आई एम द पर्सनल टच बिकॉज आई एम ओनली डूइंग द कास्टिंग। सही। तो बस उतना एक बेस्ट मुझे लगता है, ये मेरी तरफ से मतलब मुझे लगता है कि गिव एंड टेक है ये, द बेस्ट इज इन हम्म। द बेस्टेस्ट वे। सही। Great. Thank you so much for your, थैंक यू। थैंक यू। thank you, mom. Okay, moving, and thank you to the little one. Uh, so moving to the next, we have 3 members who would like to ask questions. So Shubham, we have Ashu, and we have Rohan, and then we have Sagar. So we have 3 members. I think one person also put their hand up. There's Saddam. So we'll just take it in this sequence. We'll take up all the questions. Please don't worry. So जिन लोगों के क्वेश्चन रिपीटेड हो then- वो बेसिकली उससे थोड़ा सा फिगर आउट कर सकता है। जी, तो मैं आपको पहले मैं आशु का, बिकॉज आई एम टेकिंग इट बाय द क्वेश्चंस, उन्होंने ऑलरेडी डाल दिया। या प्लीज प्लीज प्लीज। आशु का क्वेश्चन है, हाउ इम्पोर्टेंट इज क्यू? वी डोंट हैव द राइट पर्सन फॉर डिलीवरिंग क्यू। There is Ashu here. आई Ashu is here. थिंक Ashu, आशु इज जस्ट अ hi सेकंड। Ashu. हाँ, देयर यू कैन सी आशु। आई जस्ट पिन द Ashu, the most important thing is the cue. Because जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो और अगर को एक्टर आपके साथ रहेगा, आपको एक वन ऑफ द बेस्टेस्ट हेल्प मिलती है टू बेसिकली परफॉर्म एज एन एक्टर इन द ऑडिशन। बिकॉज अकेले एक एक बीट्स होती हैं, एज एन को एक्टर एक एक्टर की ना बीट्स होती हैं बीच में। तो क्या होता है कि आप
अपनी लाइनें करते चले जा रहे हो और आपको कुछ नहीं मिल रहा है ना वहां से, तो ऑडिशन बढ़िया नहीं होगा। और मैं एज एन सीडी ना, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि जो भी ऑडिशन आए, कम से कम सामने वाला लाइनें बोल दे, बस आपको उतनी बीट मिल जाए, वो बहुत जरूरी है। इट्स वेरी एसेंशियल थिंग। आपको सिर्फ लाइनें मिल जाए ना बस आशु, वो भी वर्क करता है। आप अपने तरीके से फिर आपको जैसे परफॉर्म करना है उसको करो। सामने वाले को इतना बोल दो, भाई तू मुझे ये पढ़ के बता दे, बस ये पढ़ दे, ठीक है। और अच्छा एक डिसेंट आपको एक ऐसा एक्टर मिल जाए जो आपको बढ़िया आपकी हेल्प, बिकॉज क्यूज आपके लिए आपको बूस्ट देता है एज एन एक्टर आपको परफॉर्म करने के लिए। बिकॉज वो नहीं होगा ना तो आप बस करते रहो हवा में कि क्या आया, कब आया, कैसे आया, कुछ नहीं समझ में आता। तो यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपका को एक्टर आपके साथ हो, आपको क्यूज मिले। नहीं तो हम ऑडिशन भी, तो अगर ऐसे होगा तो हम ऑडिशन भी बिना क्यूज के लिए दे सकते हैं ना, मतलब हाँ जी खड़े हो जाओ चलो शुरू करो जी, ऐसे तो मतलब फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना, मतलब कुछ भी करने का, है ना। या Okay, thank you so much for that question, Ashu. अगला क्वेश्चन मैं लूंगी रोहन का. So प्लीज रोहन। I'm looking for, रोहन या yeah, found Rohan. So yes, Rohan, kindly go ahead with your question. सो आइडिया इज कि ये देख, फेलियर मुझे लग रहा है कि होते रहेंगे लाइफ में। फेलियर्स होना भी बहुत जरूरी है। कोई शायद आपको एक्सेप्ट करे या ना करे, एज एन एक्टर हो भी सकता है। हो सकता है कि वो कुछ हर एक कंपनी का अपना एक छोटा सा प्रोसीजर है, प्रोसेस है कि वो चाहते हैं कि यार उस एक्टर के लिए या उस कैरेक्टर के लिए वो, हो सकता है कि एक वर्किंग एक्टर देख रहे हो, है ना, या कुछ चीजें ऐसी हो रही हो जो शायद उनको उनके सेगमेंट में पॉसिबल नहीं हो पा रहा हो, ठीक है। तो वो आपको फेलियर लग रहा होगा, बट इट्स नॉट अ फेलियर और नॉट इज अ डायरेक्शन। इट्स अ थिंग विच दे थिंक कि अभी इस सेगमेंट में फिगर आउट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ओके। हो सकता है अगर उनकी जगह मैं भी होता तो शायद मैं भी यही करता, है ना, कि मुझे जो इस वक्त जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उस सेगमेंट में आप फिगर फिक्स नहीं हो पा रहे हो, है ना। राइट। मुझे लगता है कि यार मुझे वर्किंग एक्टर ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मेरी डायरेक्टर को उसकी ज्यादा नीड है, ठीक है। पर यस, ये भी जरूरी है, मैं इसके साथ ये भी बोलूंगा कि मैं एज अ कंपनी, जो हम लोग हमेशा पॉसिबल करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, और ऐसा पॉसिबल मैं भी गलत साबित हुआ हूँ कई बार तो नहीं, कुछ कुछ बार, जहां मैंने एक अच्छे एक्टर को ऑडिशन किया है, मतलब न्यू एक्टर को, एंड दैट हैज बीन कास्टेड, राइट। ठीक है। तो जरूरी है कि मुझे भी बेसिकली होता है कि यार एक क्या कहते हैं कि एक ट्राई मार लेते हैं, है ना। मैं टेस्ट तो कर ही लेता हूँ, और जब वो मुझे टेस्ट अच्छा लगता है ना, आई एम ऑनेस्टली सेइंग, मैं वो डायरेक्टर को टेस्ट दिखाता जरूर कि यार ये भी है, फिक्स देख लो आप। अगर आपको इस कैरेक्टर में जम रहा है तो ठीक है, हम दोबारा टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि यार ऊपर नीचे है। बट अगर आपको लग रहा है कि कहीं और भी जा सकता है ये, तो भी आप देखो। और मैं कह रहा हूँ राइट। इन अ जर्नी ना, छोटा बड़ा कुछ नहीं है ना, जर्नी वी हैव टू डू इट। द आइडिया इज कि कीप डूइंग इट, और कीप हम्म। डूइंग से ना आगे कब बढ़ जाएंगे वी नेवर नो इट। राइट। वी हैव टू कीप डूइंग इट। इट्स नॉट अबाउट स्मॉल और बिग, इट्स ऑल अबाउट टू कीप डूइंग इट, हम्म। ठीक है रोहन। सो यस सर। बेस्ट ऑफ लक व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, एंड डेफिनेटली यार इट विल, मतलब द डे विल कम व्हेन यू आर गिविंग द बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। राइट। सो कीप वर्किंग ऑन इट। या। So थैंक यू। Rohan, this particular workshop is specifically for this reason कि आप अगर एक particular section पे पहुंच गए हैं जहां से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, you are actually stuck and you're going in circle. You have हम्म। to take that circle. So not only will you get guidance from Shivam, you will see a lot of other actors also trying to go ahead. We've had 4 very successful such workshops. One was with Shivam online, and one was with Shivam in Dubai in person. And Shivam does insane number of workshops in Bombay. So he actually helps, partner with the actor
hand holding them on a personal level to go over that one hurdle which each one is struggling with. तो वो Right. particular problem को solve करने के लिए, and we've got a lot of inquiries from UK. That's why we finally made this plan where we will fly him down and get him to stay Mm-hmm. and actually work with actors of a small number, small group, so that they can actually get that particular access to an expert जो London में easily available नहीं है. You're very right. There's a lot of, like for example, like Mohammed also said, there's been Mukesh Chabra workshops and everyone. They are very, very good. The reason they are coming all the way is because they know that it's not easy for you to fly down. The other thing, but thank you so much for sharing your question. I think आपके question की वजह से काफी लोगों का दूसरा भी doubt clear हुआ होगा. So thanks once again, Rohan. I have a question with Shivam. Shivam, मेरा एक question आपके लिए ये है कि अगर जैसे अभी जिनसे हम बात करें सब लंदन में हैं और आपका मान लीजिए ऑडिशन रिक्वायरमेंट, थैंकफुली अभी सारे ऑडिशंस ऑनलाइन हो गए हैं. सो आपका ऑडिशन जो है आपके इंस्टाग्राम पेज पे रहता है, सारे ऑडिशंस आपके इंस्टाग्राम पेज पे रहते हैं. सो एवरी टाइम समबडी सेज कि ऑडिशंस कहाँ देखने हैं, हम लिस्ट ऑफ इंस्टाग्राम वो दे देते हैं हैंडल्स कि आप इन सब में जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. वी आर नॉट द मिडिल मैन, हम शिवम को मैनेज नहीं करते हैं. तो अगर वो लंदन में है तो ये जर्नी कैसे होगी कि एक ऑडिशन आया, उन्होंने बना के दिया और उनको अच्छा लगा, वो जो टाइम स्पैन होता है कि बिटवीन द पर्सन एंड द प्रोजेक्ट, क्या वो सिर्फ लोकल लंदन के लिए, यूके के लिए अप्लाई करें, यूके यूरोप के लिए, या शुड दे आल्सो बी ओपन टू अप्लाइंग फॉर प्रोजेक्ट्स जो मुंबई इंडिया में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में हो रहे हैं? ये जरा आप बताएं. थैंक यू टीना. सो बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो यूके में अपॉर्चुनिटीज हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं तो हम वहीं के लिए अप्लाई करेंगे. ठीक है. सी अगेन द आइडिया ऑफ दिस होल थिंग टू क्रॉस ओवर टू वर्क हेयर एज वेल. ठीक है. कि हमें कोशिश हमें ये करनी है कि हम यहाँ पर बम्बई के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं हम उसमें काम कर पाएं. सी अगेन इसमें बस एक चीज ये होती है, ऑनेस्टली आई एम सेइंग, कि मान लो अगर हम लोगों ने आपने अप्लाई किया एज अ इन बम्बई रिक्वायरमेंट, ठीक है, चीजें हुई, तो क्या होता है कि देखो प्रोडक्शन ना कोई भी हो, आप भी प्रोड्यूसर्स हो गए, चीजें होंगी, आप भी प्रोडक्शन हैंडल कर रहे होगे, तो आपको भी ये होगा कि यार वो मुझे फ्लाई करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे. दीज ऑल क्वेश्चंस बेसिकली कम अप इन द माइंड, राइट? बट सी अगेन फर्स्टली वी हैव टू फिगर इट आउट कि if we have to work in the industry, ठीक है, if we have to work in Mumbai space, so आपको शुरुआत में, क्योंकि मैं एज अ सीडी मैं तो यही बोलने वाला हूँ कि सद्दाम और जितेंद्र बेसिकली यार बॉम्बे से हैं, बट दे आर डूइंग समथिंग इन लंदन राइट नाउ. ठीक है. सो सॉरी सॉरी फई. नहीं, नथिंग शिवम, प्लीज कंटिन्यू. सो वो है तो आपको ना अपनी चीजें थोड़ी शुरुआत में इनिशियली आपको खुद फिगर आउट करनी पड़ेगी. ठीक है. खुद चीजें आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी कि कैसे बेस्ट हम लोग कर सकते हैं. हम लोग अच्छे ऑडिशन करेंगे, चीजें करेंगे. इफ समथिंग हैपन, एज आई नो जितेंद्र वेरी वेल, ही कम्स इन एंड आउट to Bombay to give auditions, to give मतलब he give test from London, he fly from there itself. जो भी होता है वो फिगर आउट करता है, because again the idea is to work. ठीक है. I know there's always a budget constraint things. I know there's always a flight, bookings, everything. But see again, as an actor, we have to figure out a certain things. ठीक है. और एंड ऐसा नहीं है कि ये हमेशा होता रहेगा. जैसे इनिशियल पीरियड जहां पे ये चीजें होंगी जरूर. ठीक है. तो यस यार, ऐसा नहीं है कि यूके में ही कुछ भी अपॉर्चुनिटी होगी, होगा. क्योंकि मैं अभी तक जितेंद्र को ही जानता हूँ यहाँ पर, और हम लोग ट्राई करते हैं कि जितेंद्र के हम ऑडिशंस लें बॉम्बे वाले स्पेस में भी. तो जितेंद्र वहां से भेजता है ऑडिशन, चीजें करता है. तो बट हाँ, अगेन मैं कह रहा हूँ कि सर्टेन थिंग्स यू हैव टू फिगर इट आउट. सो यस. Okay, great. Thank you so much for that. Now, we have questions from Jitendra. So, Jitendra, I'll unmute you and then we can take up Saddam's questions. We know Vaishali also has a question. So, Jitendra, please go ahead with your question. Hi.
Thank you for arranging this, Dina, and thank you, Shivam, for. I think we have made you talk so much, so we're really sorry, but it's very insightful. It's very helpful for me, and I'm sure that others would benefit as well from this one. मैं अभी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा क्योंकि I will use that 5 days workshop fully for questions, for many things. So I'll save myself for that. But I would just request all the participants here, that I know Shivam since a long time, and I can tell you one thing that I see a casting director here more passionate than any other actors, you could see. He is such a passionate casting director that he puts so much effort into actors, and I'm sure that you all will learn so much from him. And I myself am looking forward to that, because मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि कब सेशन करूं. मुंबई में वर्कआउट नहीं हुआ. फाइनली, थैंक्स दीना, आई थिंक आई एम गेटिंग ए चांस इन लंदन टू कैच हिम समहाउ. एंड मैं ये समझता हूं कि शिवम से सीख के ना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप शिवम को ऐसा सोच रहे हो कि आप शिवम की कास्टिंग के लिए आप ये वर्कशॉप करो और आप सीखो जो प्रोजेक्ट्स आएंगे. मैं अपने आप को सोचता हूँ कि आई विल बी वेरी ग्रेटफुल दैट आई get few things from him, and I prepare myself better for other casting directors also. I have, to be honest, auditioned all the casting directors mostly in Mumbai. They have my profile, but things are working, sometimes it's not working. Now I think for myself this is a great opportunity. I will pick up that workshop definitely, and I'll try to improve myself so that other casting directors also notice me and give me, auditions होते हैं. ऑडिशंस के यहाँ पे हम ट्रिक सीखेंगे, उसके बाद वो क्रैक भी होना चाहिए. एंड परहैप्स दिस सेशन विल हेल्प अस ऑल. So thank you very much, Shivam and Dina. Thank you. Thank you. Bye. Thank you so much, Jitendra. Very sweet of you and very nice of you to share your opinions. Looking forward to seeing you soon. Definitely. Thank you. Thank you. Okay, moving to the next, we have Saddam who has a question. Right. Saddam, you can unmute. Right. Hello. Hi. Hi, Shivam. Hi, Saddam. Saddam, your screen is open. Your voice is cracking. आप वीडियो ऑफ करके बात करना चाहते हैं? सदाम, वॉइस क्रैक हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. अब ठीक है ना? एक मिनट. अब ठीक है? अब is it better? अब Yeah, slightly better. Yes, go ahead. ओके. तो मेरा ये क्वेश्चन है शिवम से कि अब जैसे आप बता रहे थे कि मतलब थिएटर आप मतलब कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि वो आपकी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखता है. मतलब आपकी जो एक्टिंग की जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू रहती है. तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ, शिवम स्क्रीन के पास आ गए ताकि आपको सुन सके. Yes, अगर yes. दिक्कत है तो फिर मैं लिख भी सकता हूँ, मतलब बाद में भेज दूंगा लिख के. नहीं, go ahead. We can hear you. We can hear you. Okay. I'll try my best to listen. Thank you very much. So the question is कि I'm doing theater since 2012 until now. Like I'm active in theater. मैंने अपनी स्टडीज भी जो हैं वो थिएटर में ही करी हैं, एक्टिंग में ही करी हैं. और आई थिंक अब एक टाइम ऐसा है कि आई फील लाइक कि ये जितनी जो ट्रेनिंग रही है, चाहे ड्रामा स्कूल में यहाँ पे, चाहे बाहर, चाहे क्योंकि मैं वेस्ट में भी थिएटर में कर रहा हूँ बहुत एक्टिवली, तो अब मुझे लगता है कि जितनी भी ट्रेनिंग अब रही है, समवेयर आई फील लाइक ये कहीं ना कहीं आई एम ओवरवेल्म्ड बाय इट. एक बर्डन सा लगता है मुझे. एंड आई थिंक एट दिस स्टेज इन माय लाइफ एज एन एक्टर मैं एक प्रोसेस में हूँ जहाँ पे लाइक आई हैव लर्न बट आई वांट टू अनलर्न अ फ्यू थिंग्स टू मेक इट टू लाइक सम वे इट शुड वर्क. लाइक ये पूरी जो ट्रेनिंग है ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करे, ना कि एंटी हो जाए. तो इस मीनिंग से मैं इंडिया वापस आया, क्योंकि यहाँ पे एक वर्कशॉप होती है पौंडीचेरी में आदिशक्ति की, और उनका कुछ प्रोसेस है. वो लोग हाईली बीट्स और रिदम पे काम करते हैं. तो मैंने अभी वो रिसेंटली वो वर्कशॉप खत्म करी है. तो मुझे लगता है कि हाँ काफी हद तक कुछ चीजें मुझे वहां से मिली हैं, जो कि ऑफ कोर्स मेरा ये बर्डन है जो थोड़ा कम हुआ है और मुझे सपोर्ट कर रहा है. बट एट द सेम टाइम while I tried to figure out the industry here in Bombay, I felt कि it is a different world.
क्योंकि अब तक मैं काफी एक सेफ वर्ल्ड में था जहां मैं अपना आर्ट प्रैक्टिस कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, चीजें वर्क कर रही थी नहीं कर रही थी, बट आफ्टर एक्सप्लोरिंग द थिंग इन बॉम्बे आई फेल्ट लाइक कि इट नीड्स समथिंग एल्स. सो आपकी जो वर्कशॉप है इसमें आपने एक पॉइंट मेंशन भी किया कि मार्केटिंग एंड नेटवर्किंग. तो मुझे ये जानना है कि हाउ, लाइक उसमें क्या है, मतलब हाउ इट विल बेनिफिट मी एज एन एक्टर, और ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब तक मैं इन सब चीजों से मैं बहुत बच के रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा आर्ट कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाता सदाम, इज इट ओवर, है ना? है. Yeah. है। तो द आइडिया इज कि ये वर्कशॉप मतलब मैं कह रहा हूँ अगेन, मैं इससे शुरू करता हूँ कि हम हर जगह से सीखेंगे, हर जगह से कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। हर तरह की वर्कशॉप से हम कुछ कुछ अचीव करेंगे और अपने उसको परफॉर्म करेंगे, लाइक बेसिकली एज एन एक्टर उसको नरिश करेंगे। इस वर्कशॉप से जो नेटवर्किंग और मार्केटिंग का जो आइडिया है, नेटवर्किंग के मायने से ये है कि अगेन जब हम लोग मिलेंगे उस वर्कशॉप में और हम एक दूसरे को जानेंगे, एज एन लाइक मैं आपको जानूंगा एज एन एक्टर, और हम लोग जब क्या होता है ना, उस वर्कशॉप से मैं एज ए ट्यूटर या मैं एज अ कुछ वो नहीं आ रहा हूँ, मैं एज अ दोस्त बन के आ रहा हूँ कि हम एक साथ मिलके कितनी चीजों पे बात कर पाएंगे। ठीक है। सो बेसिकली जब मैं वहां मिलूंगा हम लोग दोस्त बनेंगे और मैं उस चीज को लेके यहाँ पर आपको प्रमोट कर पाऊंगा इन टर्म्स ऑफ अपने दोस्तों और अपनी कम्युनिटी में, कि यार जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं आपको प्रमोट कर पाऊंगा अपने अदर वेल बीइंग कास्टिंग डायरेक्टर्स जो कलीग्स हैं मेरे, है ना, जो उनको मैं बता पाऊंगा कि यार ये एक्टर्स कुछ मैंने फाइंड आउट किए। सी अगेन मैं कह रहा हूँ आपका शायद डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा उन लोगों के साथ, और आप कोशिश भी कर रहे होगे उनको ऑडिशन देने की या उनको परफॉर्म मतलब उन तक आप पहुंच पाओ, या आप उनके पास पहुंच गए हो बट वो आपको शायद आपको अच्छे तरीके से आपको प्रॉम्प्ट रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो। बट फ्रॉम दिस साइड मेरी तरफ से आपको हो सकता है आपको आप थोड़ा सा क्या मतलब बेसिकली आपको आपकी बात सुनी जाएगी। ठीक है। मतलब जितने भी हमारे और कलीग्स हैं आपकी बात सुनेंगे, आपके ऑडिशंस लेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, मेरे बिलीफ पे ही एक सामने वाला आदमी भी आपको टेस्ट कर रहा हो। ठीक है। या आपने कहीं भी उसको दिया होगा, या आप मुझसे बोल सकते हो कि यार मैंने वहां दिया है, आप मेरी वहां बात करा दो, तो मैं आपके एसोसिएट से उससे मैं आपको कनेक्ट करवा सकता हूँ, सिनेइंफो के थ्रू आप उनसे कनेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है। सो दिस कैन ऑल्सो बी डन एंड इन द मार्केटिंग स्पेस। आई डोंट नो कि मार्केटिंग इन द टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग और मार्केटिंग बहुत जरूरी है एज एन एक्टर। ठीक है। मतलब मैं भी नेटवर्किंग और मार्केटिंग करता हूँ एज अ कास्टिंग डायरेक्टर। ठीक है। बिकॉज ये जरूरी है, दिस इज अ पार्ट ऑफ आर बिजनेस, राइट। आप अच्छे एक्टर हो या कैसे भी किस तरीके से भी आप चीजों को डिलीवर कर रहे हो, बट अच्छे लोगों से मिलना जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना और अपनी एग्जिस्टेंस बताना कि यार मैं भी एज एन एक्टर एग्जिस्ट करता हूँ। सी अगेन मैं आपको एक अपना पर्सनल स्पेस बताता हूँ कि मेरा प्राइमरली ना, जब भी मैं किसी आदमी से मिलता हूँ जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, मेरा प्राइमरली हमेशा ये होता है कि मैं उस आदमी से मिल पाऊं, मैं उस आदमी को अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाऊं कि यार मी एज अ शिवम गुप्ता भी एग्जिस्ट करता है इस मार्केट में। काम तो सेकेंडरी है, हो जाएगा, आई नो दैट, बट अगर मैं उससे एक बार मिल लिया, उसको अपनी बात रख दी, और अगर मेरा और उसका मिलन एज अ एनर्जी, एज अ बेसिकली क्रिएटिवली हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, तो डेफिनेटली हम काम करेंगे। और मैंने ऐसे कई काम किए भी हैं। काम सेकेंडरी है। अगर आप इससे सोच के जाओगे आज उससे काम लेके आऊंगा, तो आप बात ही नहीं कर पाओगे नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ काम घूम रहा है, इससे काम ले लो। ऐसा नहीं होता है। यहाँ के लोग बहुत डिफरेंट हैं, बहुत अलग तरीके से चीजों को फिगर आउट करते हैं। आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन एक्टर, व्हाट यू हैव डन बिफोर एंड व्हाट यू वांट टू डू इट। सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ब्लैंक के साथ कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, या आइडिया है कि मैं आज काम लेके ही जाऊंगा, वो नहीं हो सकता।
So yes, marketing and networking is very important. It's a side hustle as an actor, and it should be done. It's nothing wrong in it. मैं भी करता हूँ, और कई प्रकार के और एक्टर्स हैं जो अगेन एस्टैब्लिश हैं, वो भी मार्केटिंग नेटवर्किंग करते हैं. सो यस, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल एज अ, ये भी एक अलग तरीके का क्रिएटिविटी है कि आप एक आदमी से कैसे मिल रहे हो. ठीक है, आई होप सद्दाम मैंने आपको इसका आंसर दे पाया हूँ. Shivam, yes, you answered it well. And thank you. थैंक यू. Thank you. Thank you so much for the question, Saddam. And actually, just to also inform, हमारे यही नेटवर्किंग की जो रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग हर महीने एक नेटवर्किंग इवेंट होल्ड करते हैं ऑनलाइन, where members join from all across, and it's exactly like this. You can unmute and ask your own questions. yes, the most important thing कि मतलब Cininfo basically as a CD नहीं, सिनेमेटोग्राफर बहुत सारे लोगों को लेकर आता है ऑन योर प्लेटफॉर्म, जिससे आप लोग अपनी चीजों को कनेक्ट कर सकते हो, एंड दैट इज द वन स्टेप ऑफ द नेटवर्किंग. जी जी, एब्सोल्युटली वेरी वाइटल. क्योंकि जैसे अगर सिनेमाटोग्राफर है, कभी कभार वो काफी सारी वेरी वेल आंसर्ड क्वेश्चंस, मतलब वेरी वेल लेड आउट आंसर देते हैं कि एक एक्टर सेट पे आके क्या गलतियां करता है, स्पेशली जब एक मार्क है, कैमरा है, तो वेरी प्रैक्टिकल एडवाइसेस मिलते हैं. तो फॉर एक्टर्स हम ज्यादा से ज्यादा आपको कास्टिंग डायरेक्टर से मिलवाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको सबका ओवरव्यू मिले. बट हम बाकी भी जैसे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, उनका भी करते हैं. सो नेटवर्क अक्रॉस, सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर्स को मत ढूंढिए, ऑफकोर्स ढूंढिए सिर्फ, जी. बट नेटवर्क अक्रॉस इज माय रिकमेंडेशन. Thank you so much for that. Next we have Vaishali. Vaishali, you can ask. ऑल्सो क्या है कि ऑल्सो बताए, सी अगेन मैं कह रहा हूँ कि ऑल्सो दिस इन दिस वर्कशॉप यू गाइज विल मीट सुपन वर्मा, हु इज अगेन अ लेजेंडरी फिल्म मेकर इन दिस इंडस्ट्री. He has made several great projects. So there is again a best idea ki, and he's doing a lot of good projects in coming years. ठीक है, so you guys will meet this person. The मतलब like मैं नहीं मिल पाता हूँ इस आदमी से. ठीक है, मैं काम करता हूँ बट मैं ही नहीं मिल पाता हूँ, इन लाइक मंथ्स हो जाते हैं. मैं कह रहा हूँ आप लोग मिल पाओगे उस आदमी से, आप अपनी बात रख पाओगे. ही विल गेट टू नो, you will get to know, he will get to know. It's it's a very good process. And Shivam के साथ Suparn will work on the last days, like last 2 days or last days, depending on the two experts. वो भी आपके साथ काम करेंगे, and he will also give from a director's point of view exactly कहाँ पर कैसे आपका. So you will not just get Shivam, you will also get Suparn as part of this particular workshop. Moving to the next question by Vaishali. Vaishali, you can ask your question now. Vaishali, you have to unmute yourself. I can't, well, we can't hear you. No, can't hear you. Once again, try again. हाँ, अभी ट्राई करिए. नहीं, आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है. सो आप अनम्यूटेड हैं, पर आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है. No, yeah, you can hear us, but we can't hear you. So put your question on the chat. I'll ask it on your behalf. Yes, great. No problem. Please put your question. Moving to the next. Vaishali, I will take your question. Don't worry. आप type करिए. Meanwhile, the next question we have is by Bhavai. Bhavai, go ahead. You can ask your question. आप अपना video on कर लीजिए, please, if you can. Please, Bhavay. Hi. Very good afternoon, Tina. First of all, thank you for hosting this, and thank you, Shivam. I'm really sorry. I'm at a very lunatic place. I cannot turn on my video. I'm really sorry. But in regards to that, मैं 100% आपकी workshop attend करने वाला हूँ. So whenever you are coming to London, that would be an absolute pleasure meeting you here. Just keen on to know, अगर हम जैसे कोई भी actor है who's planning on to start, और जिसने भी थोड़ा बहुत काम किया है, how do they connect with you? आपको directly auditions भेज सकते हैं, या do we have to get in touch with Cine बिल्कुल Info? भाई लोगों, मैं जब भी वर्कशॉप में हम लोग बात करेंगे, so there's a mail ID which will I give you.
ठीक है, Mhm. which on which we will connect. I will give you my associate number as well, who will be giving you the call or the auditions brief or something like that. ठीक है, तो हम लोग again मैं कह रहा हूँ कि we will be in touch on the mail and as a directly to my associate because he or she works with me very closely. So और मैं ही उनको बोलने वाला हूँ again कि इनका टेस्ट करो और चीजें करो. So yeah, Bhavay, that's we will move around. Superb. And one last thing, what are your tentative dates? When are you planning on to come? The dates are mentioned, Bhavai. It is 27 September से लेके 1st October and it will be in the second half. Central London में है. We've put all the details. What I'll do is I'll send it across again on WhatsApp to you. Superb, superb. Thank you, Tina. Thank you, Shivam. See you soon. Thank you, Bhavai. Thank you so much. वैशाली ने अपना क्वेश्चन लिखा क्या डीना? नहीं, उनका क्वेश्चन अभी तक चैट पे आया नहीं है. So as soon as that She's comes, saying she has sent it to you. maybe she sent it after. Once again, हाँ, आ गया, correct. So उनका क्वेश्चन है, what is the workshop structure going to be like across 5 days? तो मतलब day wise शायद वो पूछना चाहते हैं. And how will this showreel be different from showreels you get in UK? ये वाला आंसर मैं कर दूंगी. And would you be providing scripts for the showreel? हाँ, first and last question आपके लिए. No, sorry, first क्या था? फर्स्ट ये है कि डे वाइज क्या स्ट्रक्चर है, मतलब वर्कशॉप का स्ट्रक्चर क्या है. अच्छा. 5 days. तो यार वैशाली, वर्कशॉप का स्ट्रक्चर कुछ एक्चुअली मैं बताऊं बहुत स्पॉन्टेनियस होता है. ठीक है, मैं लाइक ऑनेस्टली सेइंग कि हम पहले दिन हम लोग मिलेंगे और चीजों पे फिगर आउट करेंगे कि व्हाट यू गाइस आर कमिंग फ्रॉम, विच बैकग्राउंड यू आर कमिंग फ्रॉम. हम थोड़े इंट्रोडक्शन में बात करेंगे. विल हैव अ मेडिटेशन एंड विल टॉक अबाउट द प्रोसेस हाउ इट विल वेंट ऑफ 3 days. ठीक है, हम उस पर बात करेंगे. हम लोग कुछ एक्सरसाइज और कुछ गेम्स भी खेलेंगे, विच इज नॉट लाइक अ गेम्स बट इट्स ऑल अबाउट दी समथिंग विच आई वांट टू गिव देयर एज वेल. मैं अब गेम्स नहीं बता सकता कि हम लोग क्या खेलने वाले हैं. सो यस, एंड सेकेंड डे अगेन हम लोग मेडिटेशन से शुरू करेंगे चीजों को वो करेंगे बिकॉज आई जस्ट वांट टू बी रिलैक्स इन द क्लास व्हेन वी आर एंटरिंग इनटू दैट स्पेस. आई वांट एवरीवन शुड बी देयर विद दैट माइंड बिकॉज बाहर की चीजों को भूल के हम वो 3 से 4 घंटे हम लोग वहीं रहें और एक दूसरे को ऑब्जर्व करें और हम एक दूसरे को सुने. एंड उसके साथ साथ हम लोग हाउ टू प्रिपेयर अ सीन पे बात करेंगे कि कैसे ऑडिशन पे किस तरीके की चीजें होती हैं, मैं कैसे काम करता हूँ, कैरेक्टराइजेशन कैसे ब्रेक डाउन होता है. उसी वक्त हम लोग थर्ड डे बेसिकली आपको सीन भी देंगे इन विच बेसिकली थर्ड या फोर्थ डे आई फील बिकॉज सुपन जो अपनी वर्कशॉप करने वाले हैं, जो फिल्म मेकर्स वगैरह, वो आप लोगों के लिए स्क्रिप्ट लिखेंगे. और अगर मान लो वो कुछ कम स्क्रिप्ट पड़ जाएंगी तो बेसिकली मैं आपको स्क्रिप्ट दूंगा जो मैं लेकर आऊंगा और हम उस पे बात करेंगे सीन पे कि सीन की हिडन जेम्स क्या होते हैं, हम उसको किस तरीके से हमें उसको सेग्रीगेट करना चाहिए. फोर्थ डे वी विल परफॉर्म द सीन with the exercises and fifth day we are recording the scene starting with the meditation. And वैशाली, आपका दूसरा जो क्वेश्चन है, how many people will be there in the group? About 15 to maximum 20 people in this group, not more than that. And we will be basically pairing the actors. Right. And last question वैशाली का है कि will you also be providing work opportunities to the workshop participants? Actually, Shivam has already done that in Dubai. Out of Yes. 25 students, I think 11 are already auditioning and looking at opportunities. So Shivam, अगर आप कुछ इसके बारे में बात करना चाहते हैं. देखो अगेन मैं आपको ये भी ऑनेस्टली से मैं बहुत ऑनेस्ट स्पेस में हूँ बिकॉज मतलब हम लोग सब लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उधर एक चीज में. द आइडिया इज कि यस, हम लोग गिव एंड टेक तो जरूर करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ आफ्टर दिस वर्कशॉप with the help of my associates and with the help of personally me also. Secondly, yes, हम लोग जो ने previously workshop करी है
जैसे कुछ फिल्म में अगर आप पे बोलूं, उस वर्कशॉप्स में से हम लोगों ने सिर्फ एक बंदा काफी है करके एक फिल्म है, हम लोगों ने कुछ 3 एक्टर्स हम लोगों ने उसमें से कास्ट किए थे अपनी वर्कशॉप्स में से. देयर इज अ लेडी हु एक्चुअली पार्टिसिपेटेड ऑन द ऑनलाइन वर्कशॉप. वी हैव कास्टेड हर इन द फिल्म. Then there's a lady who lives in Bangkok who has actually participated in the online workshop, which she has also been casted. So yes, some of the actors has been casted from the workshop because I got to see personally कि how मतलब how much strength they have to actually like पता चल जाता है ना यार, एक एक दूसरे के वाइब से, एनर्जी से पता लग जाता है कि इस आदमी पे कितना काम करना है और कितना नहीं. तो बस बाकी तो हमें काम करते रहना है. जरूरी ये है कि वी विल बी परफॉर्मिंग एंड वी विल बी डूइंग इट. दैट्स ऑल द आइडिया इज. So Vaishali, very sad that audio is not working, but we have your credentials, we have your phone number. We'll send you a WhatsApp. I can talk to you directly, and if required, we'll answer all your questions if you have any more. Okay. Thank you so much, Vaishali, for your questions. Thanks. Thank you. We have now, I'll just quickly mention, we'll go for Sneha, Prakhar, and we'll circle back to Rohan. Rohan has one more question. So Sneha, then Prakhar. Agar kisi ka question reh gaya hai, doubt reh gaya hai, please put it on the chat or put up your hand on the Zoom. So next question is Sneha, then Prakhar. Yeah. So Sneha, if you can switch on your video, that will be great. And go ahead, ask your question. Firstly, I'm so sorry I can't show my video at the moment because I'm out right now. But I just want to say thank you so much, Cinefo, for putting on this Zoom. And Shivam, thank you so much, Shivam, sir. Your webinar has been so informative and honest. You're such an honest person. So it helps actors like us. So I just wanted to ask, I'm planning to participate in the workshop. Is there anything else that we can prepare as actors before the workshop so we get the most out of the workshop, we're more productive, and also it's easier for you as a casting director, as a workshop leader to get the most out of us? Thank you so much. Hi Sneha, thank you. Before the workshop, like I don't want anything to be prepared in the workshop. I don't want any pre-planning ki we will do like this or something like that. I just want ki what you are doing, guys, just go for it, keep doing it. We'll just meet in the workshop and start our 5 days very like a spontaneity. Like I don't want anything to be prepared. Just come with an empty mind to take a lot into that thing. Like just figure it out कि जो भी सीखा है, तो that idea, जो भी एक्टिंग के बारे में या ऑडिशनिंग के बारे में जो भी चीज है आपने सीखी है, बढ़िया है. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बस कोशिश करनी है कि हम उसको निकाल कर आए, और जो मैं बताने जा रहा हूं या जो मैं बताऊंगा उसको आप नई तरीके से उसको ले लें. बिकॉज क्या होगा, एक्सेसिव इंफॉर्मेशन हार्मफुल भी होती है ज्यादा. Thank you so much. Thank you. Thank Sorry, you. thank you so much, Sneha. This entire workshop is also available for a few members who are freshers, but they'll be paired accordingly. So Shivam ka jo pairing hai, it'll happen like that. So even if we have some members who are fresher who don't have any body of work, they are also going to be participating, but they will be paired and kind of trained accordingly. So you don't need any preparation for this. Thank you so much, Sneha, for the question. Quickly moving to the next question. Prakhar. The next question is by Prakhar. I'll just add Prakhar to the screen. Yes, go ahead, Prakhar, with your question. हाय शिवम सर, थैंक यू स्नेहा. क्योंकि शिवम सर मेरे को एक काउंटर क्वेश्चन था आपके साथ. आपने कहा था मार्केटिंग और नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस फील्ड के रिगार्डिंग, एंड आई एम आल्सो फीलिंग दैट. तो मेरा ये क्वेश्चन था कि आजकल जैसे पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा ऐसा हो चुका है कि ऑनलाइन और लाइक सोशल मीडिया के थ्रू ही कास्टिंग या रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट्स या फिर वो रहती है. तो मेजरली ऐसा होता है कि अगर हमें मेल आईडीज भी पता चल जाती है या फिर कॉन्टैक्ट नंबर भी पता चल जाता है, तो आई गिव माई प्रोफाइल्स और माई शो रील, आई शेयर टू द कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड एवरीवन और द एसोसिएट्स.
तो बट मेजरली ऐसा होता है कि उनके पास भी अगर एक रिक्वायरमेंट पे एट अ टाइम 300 से 400 रिक्वायरमेंट्स के वो आ जाते हैं कि लाइक प्रोफाइल्स आ जाते हैं। उसमें मेजरली ऐसा मैंने फील किया है कि मेरी भी प्रोफाइल बीच में ही स्किप हो गई होगी या लोगों ने नहीं देखी। एंड रिसेंटली मैंने एक ये लाइक कास्टिंग डायरेक्टर से मैंने वर्क किया था, उसमें मैंने उनको बताया कि मैं 1 साल से उन्हें चेस कर रहा था। मैंने उनको हर लाइक 2 मंथ्स और 3 मंथ्स में मैंने उनको प्रोफाइल अपनी अपडेट करके शेयर करी है या फिर आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट हिम, तो वो आंसर नहीं दे पाए या फिर उन्होंने ही हैजंट सीन माय प्रोफाइल एनी टाइम। तो उन्होंने भी कहा कि यार मेरे पास कभी ऐसा इतने ज़्यादा आती तो हो सकता है कि मैं देख ही नहीं पाता हूँ। तो सर ये चीज़ को एक ब्रेकआउट करने के लिए कैसे कर सकते हैं या फिर क्या एक ऐसा नया वे ट्राई आउट करना चाहिए एज एन एक्टर की किसी तरीके से एक कास्टिंग डायरेक्टर या फिर उनके एसोसिएट से एक बार हम विजिट कर सकते हैं, मिल सकते हैं? ठीक है, थैंक यू प्रका फॉर आस्किंग दिस भाई। सो तो बेसिकली क्या होता है कि आप भी ह्यूमन बीइंग हो और मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, ठीक है। मैं कोई रोबोट तो हूँ नहीं जो बेसिकली पूरे दिन हम लोग सिर्फ मेल ही चेक करते रहेंगे और मतलब हम उस पर काम करते रहेंगे। द आइडिया इज कि हम जरूर कास्टिंग डायरेक्टर्स, आई एम नॉट काउंटिंग कि कौन क्या करता है, मैं बिल्कुल उधर नहीं जा रहा हूँ, सबका अपना अपना प्रोसेस है। मेरे प्रोसेस में हमेशा ये रहता है कि हमारा एक ऑलरेडी एक बंदा जो हम लोगों ने इसके लिए स्पेशली हायर किया हुआ है कि जो मेल्स चेक करता रहे और उसकी चीजों को डेटा उसको सेग्रीगेट करता रहे, कौन आदमी कहाँ से है। अब उसमें एक कैरेक्टर के लिए यस बहुत सारे मेल आते हैं, बट हमारा ये होता है कि हमेशा हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो कैरेक्टर की होती है उसके हिसाब से हम उसको फिल्टर आउट करते हैं, ठीक है। तो अगेन हम 300 ऑडिशन तो नहीं ले सकते एक कैरेक्टर के, इतना टाइम ना ही हमारे पास है और हमारे पास उतनी एक चंक भी नहीं है, ठीक है। हम उस कैरेक्टरिस्टिक्स के हम लोग ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 टेस्ट लेते हैं, जो कि हम लोग उसको फिल्टर आउट करते हैं बहुत बहुत तरीके से, ठीक है। और उसके बाद हम उनको टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब आइडिया ये है कि वो मिस आउट हो जाता है, चीजें हो जाती हैं, यस डेफिनेटली हो जाती होगी यार। मतलब अगेन मैं बोल रहा हूँ कि इतने मेल्स आते हैं मेरे पास, हर रोज कम से कम 300 मैसेज आते हैं कि यार आप ऐसे देख लो, आप ये देख लो। बट मैं हर एक मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं हर मैसेज का रिप्लाई करने बैठूंगा तो शायद मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा जो शायद मेरे को करना है, ठीक है। तो मेरी भी अपनी मेंटल स्पेस है, मतलब मैं भी ऐसा एकदम से ऐसे खत्म हो जाता है मैं, ठीक है। और सो आइडिया ये है कि आपका काम है हमें पिच करते रहना, हमारा काम है अगेन आपको बुलाते रहना। ये एक गिव एंड टेक का तरीका है और हर एक प्रोजेक्ट के हिसाब से रिक्वायरमेंट बदलती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपने मेल कर दिया तो अब वो खत्म हो गया। उस दूसरी रिक्वायरमेंट के साथ हम लोग वापस देखते हैं कि कौन कहाँ जा सकता है। सो इट्स अगेन मैं यही बोलूंगा, यू हैव टू जस्ट कीप डूइंग इट बिकॉज इट्स अ वर्क, अगेन इट्स अ प्रोसेस, ठीक है। सो यू हैव टू डील विद, ठीक है। थैंक यू, आई होप आई कन्वेड योर क्वेश्चन। Yes, yes, yes. I'm Thank you. sharing your Thank my you. profile like a year and a half. It takes time, Prakhar. I promise you, this is a very अगर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, Yes, मैं अपना आइडिया, क्योंकि मैं भी अगेन जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, मैं एक एक्टर की ना जर्नी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज मैं भी थिएटर जर्नी से आता हूँ, ठीक है। सो बहुत सारे एक्टर्स हैं जो मुझे पिच करते हैं, जो मुझे अप्रोच करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं उनका आंसर नहीं दे रहा हूँ तो मैं उनके प्रोफाइल को चेक नहीं कर रहा हूँ या चीजें नहीं कर रहा हूँ। मैं हमेशा बेसिकली जब मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और किसी बंदे का प्रोफाइल आया है तो मैं उस चीज को फॉरवर्ड कर देता हूँ अपनी टीम के ग्रुप में कि यार इस बंदे को कॉल कर लेना। मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बट ट्रस्ट मी आई फॉरवर्ड द नंबर टू द ग्रुप, तो वो चला जाता है, ठीक है। क्योंकि मैं हर मैसेज को नहीं कर सकता, जहां मुझे मौका मिलता है, जहां मुझे टाइम मिलता है, मैं बोलता हूँ थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, विल कनेक्ट टू यू सून। इतना ही कर सकता हूँ मैं सिर्फ। yeah. Understand. Thank you so much, Prakhar. Thank you. And this is a very important section, I must tell, क्योंकि देखिए हम लोग स्टार्टअप है, मैं दिन भर लिंक्डइन में लगी रहती हूँ और सबको आई कीप रीचिंग आउट टू पीपल फॉर कनेक्शंस, फॉर इन्वेस्टमेंट्स, फॉर पार्टनरशिप्स। आई कैन अश्योर यू हमारे 1000 ईमेल्स में से हमें 10% रिस्पॉन्स आता है, थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी और फॉर योर प्रपोजल एंड लेट अस सी इफ समथिंग कैन हैपन, एंड लेस देन 0.1% of the time we get a meeting.
सो ये एक इट इज अ जर्नी, जैसे आपकी एक जर्नी है, इट इज टू बिल्ड समथिंग, हमारी एक जर्नी है जो हम आपके लिए बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. सो इट विल टेक टाइम, बट वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक अ स्टार्टअप, an actor, persistence is key. So that's it. Be very stubborn and be persistent. That's it. Everything else will work out. So Shivam, I think we've taken everybody's questions. अगर किसी के questions रह गए हैं तो please हाथ खड़ा कर दीजिए वीडियो में. I think Rohan had one more question, follow-up question, I think. Rohan, did you have one more follow-up question? Yes, okay. I'll just add pin and yes, go ahead, Rohan. Sir, I would like to thank you also and everyone else who asked the question. I'm sure that it helped many people. Sir, like you mentioned that you have some projects in UK in coming days. So how do we audition for that? वो तो करेंगे दोस्त, वो तो करेंगे ही करेंगे, मतलब वो तो आगे की जर्नी है. अभी तो मैं भी खुद फिगर आउट कर रहा हूँ कि स्क्रिप्ट आ जाए, चीजें आ जाए, और मेरे को पता चले कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से एज ग्रुप में है. सो डेफिनेटली वी विल वर्क इट आउट अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर्स, क्योंकि मुझे भी अभी बहुत पता चला है कि यस वी आर डूइंग इट, दैट वाज श्योर. बट क्या स्क्रिप्ट है, चीजें हैं, फाइनल अप्रूवल एक बार ड्राफ्ट का आ जाए एंड देन वील गो अहेड. तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम है, बट Okay, डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंगली जो भी होगा विल ट्राई टू रीच आउट टू यू. sure. Okay. दूसरी चीज मैं बस लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ, पैशन एंड पेशेंस बोथ इक्वली वर्क्स. सो ट्राई टू बी इन दैट जोन, बिकॉज विदाउट पेशेंस, विदाउट पैशन नहीं हो सकता, और विदाउट पेशेंस भी नहीं हो सकता. सो पैशन और पेशेंस दोनों इक्वली वर्क करता है. जो अगेन आई एम सेइंग, बिकॉज आई एम ऑल्सो फॉलोइंग दिस words to keep motivating me to keep doing more good work with the good directors, and to basically keep working with the newer actors who brings a lot on the table with a fresh ideas and the things they can unique space. So just keep doing it, because that's the only way to crack it. Right. Okay. Great. Thank you so Thank much. you. Thank you, sir. Thank you, Rohan, for your question. And this marks the end of all questions. We have the very next session with Suparn in another 45 minutes. So anyone who's interested in filmmaking, writing and producing films, please join the next one. Or definitely wants to hear Suparn. Suparn थोड़ा सा बताएंगे कि वो actors के साथ क्या क्या काम करें, but 80%, 90% will be to learn from about बहुत अच्छी filmmaking. चीज है कि एक डायरेक्टर आपके साथ बात करेगा तो लाइक सेट पे क्या चीजें होती हैं, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, और बहुत सारी चीजें जो फकअप हो जाते हैं, और उस पर किस तरीके से हम लोग उसको हैंडल कर सकते हैं एज अ डायरेक्टर, एक्टर्स. सो इट्स अगेन very insightful thing. So you can learn from Supan. He's a gem of the person as a creator, as a human being. Right, completely I agree. know him very well. Completely agree. Completely agree. He has helped me a lot in my journey. I also want to say this. He has helped me a lot in my journey, and this collaboration, like it's now 7 years. 7 years. When I met Supan, and from that date till now, and आगे भी, he's been a great friend, a great mentor, and a great human being as a collaborator. So I really appreciate him as a creator and a human being. Yeah. Great. Thank you so much. And so anybody else who has questions? Piyush, you have a question? How can we join the workshop details? So Piyush, we already have shared the details on Instagram as well as on on our website. So you can check it, or we have your details. So we will send it to you on email as well. Or we can call you on WhatsApp. So I'm just sending you our website. It's www.cininfo.in. You can go to Shivam's page also. Even on Shivam's page, Instagram page, it is there. So either on our Instagram page, our website, or Shivam's page, you can find out more details. I have put our website on the chat for you. But I have made a note of it. I will reach out to you separately as well. The dates are from 27 to 1st. 27 September से लेके 1st of October तक. We have kept a weekend in the middle, ताकि आप लोग अगर काम करते हैं, you don't have to take all 5 days holiday. So Friday, Saturday, Sunday ऐसे करके है Monday, Tuesday तक.
Very important, don't miss any of the days. Please कुछ काम मत रखिए उन 5 दिनों में. एक continuous activity है, वो momentum बहुत important है. So it is very important that you're able to get the maximum for this particular workshop. But thank you once again. Piyush, I hope I've answered your question. Anybody else has a question? Please हाथ खड़ा करिए because we are wrapping up right now. Okay, great. So thank you so much for your questions. Shivam, last few words. बहुत सारे वर्ड्स ऑलरेडी मैंने बोल दिए हैं. But I'm hoping to see you guys to coming to basically give and take all the things we can actually learn from each other. So I'm really looking forward for this exciting workshop and to meet you. That's all I want to say. Baki, like I'm honestly saying, you will learn something new. That's my promise. Thank you. थैंक यू सो मच. मैं आपको एक लिंक डाल रही हूँ चैट पे, आप लोग प्लीज वो लिंक देख लीजिए. दिस हैज द डिटेल्स ऑफ द एंटायर वर्कशॉप बाय शिवम. सो द लिंक इज देयर ऑन द चैट. एक बार देख लीजिए. अगर कोई क्वेश्चंस है तो फिर you can look at the page. We have to quickly wrap up. The next session is starting in another 45 minutes. Thank you once again, Shivam. Thank you everyone. Thank you everyone. Looking forward to meet you guys. Yes, Thank very you. much. We are very excited. Looking forward to seeing you in London very soon. Thank you, Shivam. Thank you. And the recording of this website of this webinar is available on YouTube by tomorrow. Yeah. Okay. Great. Thank you so much. Have a wonderful Sunday. And thank you so much for joining us. Take care. Bye.